Once Narad Muni asks Krishna, "Can you give me like an address?" कोई मुझे पूछे कि भगवान कहाँ रहते हैं तो मैं उनको क्या बताऊंगा? So the Lord says this, "नाहम तिष्ठामि वैकुंठे योगिनाम हृदयेषु वा यत्र गायन्ति मद्भक्ता तत्र तिष्ठामि." इतना सुना है वृंदावन धाम के बारे में. I want to know क्या महिमा है इस धाम की. Even a speck of dust from Vrindavan is worshipable for Brahma, Vishnu and Mahesh, they say. This is that land where Krishna was or is, where Radharani is. Unfortunately, they say यहाँ पे जो यमुना बहती है वो यमुना नहीं है जो दिल्ली में बहती है. The sun you see in Vrindavan, the moon you see in Vrindavan is not the sun and moon of the world. It's not a place, it's an experience. Do you think if you're coming to Vrindavan आपको you can get glimpse of Krishna? Glimpse of Krishna के लिए वृंदावन के आने की जरूरत नहीं है. Vrindavan is not a place. How are you managing everything with content creation? I don't even call it content creation. I call it preaching. मैं अपने गुरु के instructions को follow करने की कोशिश कर रही हूँ. I don't take this as a profession. I don't take deals that come on Instagram, which do. Tell us something more about ऐसे कोई hidden gems. वृंदावन में इमली नहीं उगती. इमली को राधा रानी ने श्राप दिया है वृंदावन में, you cannot throw here. Why is that? Hidden gems सिर्फ मंदिर नहीं है. Hidden gems इंसान भी है. There are some places जो बहुत 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 पुरानी है. देखिए, for example, राधे राधे जानवी. Thank you so much for being here. Thank you so much for taking out time for us. इतने short span time में you took out time for us and we are very delighted. my time is for people who seek spirituality. So I am grateful. I'm so grateful that you reached out. Lucky I could share what I have with you and with the world through you. So thank you so much for having me. Can't wait. I have so many questions, but I really want to start from somewhere. That इतना सुना है वृंदावन धाम के बारे में. I want to know क्या महिमा है इस धाम की. That's like the epitome of a question to begin the podcast with. But thank you so much for hitting the bullseye right in the beginning. Vrindavan. Yeah. Everybody wants to come. सब आना चाहते हैं at this point to Vrindavan, which is a good thing because this is not an ordinary land. Like even Vrindavan की जो मिट्टी है, जो रज है, even that is something that is so potent that there's a shloka in our shastras जहाँ पे जो मुक्ति है, you know what's मुक्ति? Liberation. सबको मुक्ति चाहिए. Like everybody is doing so much and by the end बस सुख शांति और मुक्ति चाहिए. Like we want the peace of mind or whatever. So Mukti is asking Krishna के everybody wants me. Where do I get mukti? Mukti को मुक्ति कहाँ से मिलेगी? Mukti is asking this to Krishna and then Krishna says, मुक्ति be in Vrindavan. जब वृंदावन की रज उड़ के मुक्ति के सिर पे लगेगी तो मुक्ति मुक्त हो जाएगी. So this is that place जहाँ की रज भी इतनी potent है. Like even a speck of dust from Vrindavan is worshipable for Brahma, Vishnu and Mahesh, they say. Like this is that land where Krishna was or is, where Radharani is. Unfortunately, today, like thousands and millions and lakhs of people यहाँ पे they're coming every day. You see there's so much traffic and there's like so many people in the temple, which is a good thing. But what's unfortunate is we have made this a trend. वृंदावन जाना है. We have made this. एक बंदा गया 10 बंदा जाएंगे. It's like something people are just doing. They don't understand this is so strong and potent. If only that one person जो टिकट लेके मथुरा स्टेशन तक पहुंच के टोटो करके या whatever करके that they're reaching Vrindavan, if they understand that this place is so potent, if they look for the right thing in the right place. वृंदावन की वही गलियां हैं जहाँ पे शायद एक बंदे को टूटे हुए घर और चश्मा छीनता हुआ बंदर और you know a cow or like open sewages or like pigs. There could be a person with this perspective that this is Vrindavan. In the same road, in the same lane, in the same gully of Nikunj of Vrindavan, another person could have a perspective that this is the same gully where Radha Krishna were here. This is the same place where even today they come. This is the same place जहाँ आज भी ब्रजवासी रहते हैं. The people who are so dear to Krishna, they're still here. Like it will be very unfortunate अगर आप वृंदावन आ रहे हो और अगर आप वृंदावन को समझते नहीं हो. So I would say don't come to Vrindavan if you don't know what is Vrindavan.
understand what is Vrindavan so that you can actually come to Vrindavan. Yes. Being here does not mean that you're here. They say आप ticket लेके वृंदावन नहीं आ सकते. मतलब you can have a ticket in your hand, but you can just be on the station wherever you live. You just could not be on the train, or something happened, or you could never reach here. And that has happened. It has happened with me as well. Like my family, it has happened with us. Like you cannot come to Vrindavan with a ticket. Even if you do, Yeah. you will not be able to experience Vrindavan if you don't understand the mood of Vrindavan, if you don't understand why are you here, what can you get here. So Vrindavan is that place which is so dear to Srimati Radharani. Bhagwan Shri Krishna tells Radharani, you tell me when to stop because I can go on Vrindavan for an hour. You can go on. So yeah. Krishna tells Radharani that I am going to the material world, like in this planet Earth. You want to come with me? And Radharani is like, no, I don't want to leave mera spiritual abode. I'm happy in Golok Vrindavan. That's the eternal place where they live together. So Radharani says, I'm not going. Krishna says, Acha, is there something I can do so that you want to go, or I can do something just to convince ho jao, or aap ready ho jao ki you want to go. Radharani says, okay, 3 conditions. 1, Giriraj Govardhan should be there. If the Giriraj, the best of all mountains, Giriraj, he's the king of all mountains. If Giriraj is there, I'll go. If Brajraj is there, I'll go. And if Yamuna is there, I'll go. Isliye Krishna had to call these 3 here so that Radharani would also come. And this is a place which is so dear to the both of them, Radha and Krishna together, that if you come here and if you understand the tattva of Vrindavan, agar aap yahan ke sages, sadhu, yahan ka mood, yahan ke bandar, everything, every small thing in Vrindavan, they chant the name of Radha and Krishna, and there's a potency in the place that you can feel if you want to feel. The condition applied, the if is very important and subtle. Most of us, we miss it out. Yes. Lekin if we put a little bit effort to understanding what is the relevance of this place. They say, यहाँ पे जो यमुना बहती है वो यमुना नहीं है जो दिल्ली में बहती है. There's a difference in the Yamuna of Vrindavan. The sun you see in Vrindavan, the moon you see in Vrindavan is not the sun and moon of the world. That's not the moon and sun that you see from the rest of the world. The Yamuna that flows here, ऐसे कहते हैं, this Yamuna is a sister of Yamaraj. Like Yam, they're both sisters, the brother sisters. So जो व्यक्ति यमुना में एक बार स्नान कर ले, like just one bath in Yamuna, you will never have to see Yamaraj in your whole lifetime. Vrindavan is so important. This is just about the Raj and Yamuna. Giriraj, you just cannot explain him. And then Srimati Radharani and her Sakhis and their pastime places in Vrindavan, it's just 1 hour is less. 1 day is less, 1 month is less. You can just keep going on talking about Vrindavan because it's not a place, it's an experience. It's an experience, it's divine. It is. There's a different energy here. I can feel that. मैं जब आई यहाँ पे रात को ही आई हूँ मैं. I can feel there's something different. There's something different in Mathura and there's something different in Vrindavan. I felt that. And when you're doing that parikrama also, there's something very different. Yeah. The roads, it's jungle, right? But it's not spooky. I did it रात को 12-1 बजे, but it was not spooky, and I don't know why it was not spooky there. People were doing Shaksha Dandavat Parikrama, and I got to know that this place is not what people think it as. People call it as tourist place. I don't know, where's divine? Delulu is not the Solulu. Yeah, why is divine energy leaving us? Why is it happening? No, I mean, divine energy, that is Krishna or the Lord that you believe in, would never leave you. A parent loves a kid, and a parent would never leave the kid's hand jab road cross karni hai. It's the kid that says, no, I can do it myself, let me do, I'm grown enough and I know how to do it, and blah, blah, blah. It's the kid who fights. And maybe for a moment the parent leaves the hand, but he's still there and watching. Yeah. Our Shastras describe that this is like described by an analogy कि एक tree है, green tree. It has 2 parrots. One is the soul, the Atma that we are, and one is the Paramatma. They're sitting together. The soul is busy acting in different ways, eating a mango, going here and there. And the Paramatma is sitting and watching the soul and hoping that this soul would one day turn to me and, actually realize that me, Paramatma, Krishna, I'm always with this kid here. So the divinity would never leave us because just consider it as a parent.
a parent would never leave a child. Yeah. Like आछा नहीं बोल सकते. हाँ. It's Kali Yuga. Who Yeah. can say? But like originally, that's what we understand, that a parent loves a kid. Yes. Same way we are kids, and the Lord loves us. He has seen us in so many different unis. And also, when you talk about unis, I remember about the place. I have never visited to Vrindavan, just for the sake of information. This is my first time, and the month which is going on, I heard that it's a very sacred month. We can see बहुत पवित्र माना जाता है कार्तिक मास को. क्या पवित्रता है, क्या महत्वता है इस महीने की? Yeah, so they say out of the 12 months a year, the best or the most dearest month of the whole Saal is this Kartik Maas to Krishna. And why is that? Because this month is Radharani's month. इस महीने की अधिष्ठात्री देवी, like the presiding deity of this month is Srimati Radharani. And thus Krishna loves this month because it's her month, like the beloved Radharani of Shri Krishna. उनका महीना है, इसलिए Krishna loves this month even more. And they say in this month Krishna is waiting and watching, like he's zoomed in and watching on कोई है जो कुछ अच्छा कर रहा है छोटा सा, I'll give him like 1,000 times benefit, just like that. Like they say if you come to Vrindavan in Kartik, like साल में वो महीना, दिवाली से 15 दिन पहले, 15 दिन, that month is Kartik. If you come to Vrindavan in Kartik, and if you just walk one step, that is equivalent to walking or doing 100 Ashwamedha Yagyas. What is an Ashwamedha Yagya? People would have no idea. I do not have any idea. Please tell us. So Ashwamedha Yagya वो यज्ञ है, like it's one of those yagyas जो in ancient history of ours, not mythology. Yeah. Mythology is a wrong word. This word was given to us by Britishers. They would label in the library that this is the mythology sections, और वहाँ पे there was Mahabharata, Ramayana. It's not a myth. Mythology comes from the word myth. It is not myth. It is our history. It is itihas. Itihas मतलब that what happened. This happened. Itihas. It is not a myth. Ashwamedha Yagya. So this comes from our itihas. This happened in the past. Ramchandra ji did Ashwamedha Yagya. There was a great king faces Anasa Prithu Maharaj. उन्होंने ये यज्ञ किया. अब इस यज्ञ से होता क्या है, इसको करते कैसे हैं, मुझे पक्का पता है. Like people have no idea. So this is what happens in this yagya. It's a very elaborate, बहुत एक extensively बड़े तरीके का यज्ञ होता है, जिसके अंदर you need pujaris and like इतना सारा paraphernalia, pure ghee and animals and like you need a lot. Yeah. At this point नहीं कर सकते क्योंकि घी कौन सा प्योर है वो ही नहीं पता. But in that time यज्ञ की प्योरिटी को चेक करने के लिए भी अलग अलग तरीके होते थे. जो पुजारी होते थे उनको आग जलाने के लिए माचिस या लाइटर नहीं यूज करना पड़ता था, वो मंत्र बोलते थे और आग जल जाती थी. There are still people on this planet who know how to do it and I've seen it. लोग मंत्र बोलते हैं और आग जल जाती है. What? Yes, I've seen it. और like at this point there are very rare people like your reaction what हमको पता ही नहीं है कि ऐसा कुछ होता भी है. So at that point in the past इस तरीके के यज्ञ होते थे जिसमें इस तरीके की प्योरिटी होती थी जो इस इन you know टाइम्स में नहीं हो सकता है. किसी ने एक अश्वमेध यज्ञ कर लिया, he was considered कि भाई this is like a very great king or something like that. So Maharaj Prithu was one of our past kings जिन्होंने 99 अश्वमेध यज्ञ किया एंड हिज एम वाज कि मैं 100 अश्वमेध यज्ञ करूंगा और मैं भगवान जी की बड़ी सारी कृपा प्राप्त करूंगा एंड आई लाइक मेक द अर्थ प्रॉस्पेरस एंड एवरीथिंग विल बी वेरी नाइस इन माय रूम. सो ही डिड 99 अश्वमेध यज्ञ और 100th करने से जस्ट लाइक 10 मिनट्स उसको खत्म होने से पहले इंद्र इंद्र द इंद्र जिसने बहुत बारिश की थी वृंदावन में, कृष्णा को गोवर्धन खाना पड़ा था, या दैट इंद्र, उस इंद्र ने आके उनके अश्वमेध यज्ञ का अश्व दैट इज घोड़ा चुरा लिया. बिकॉज इंद्र नहीं चाहते थे कि अश्वमेध यज्ञ का 100th जो स्टेप है वो कंप्लीट हो. क्यों? क्योंकि अगर आपने 100 अश्वमेध यज्ञ कर लिए तो आप इंद्र की पोस्ट के लिए क्वालिफाई कर जाते हो. ओके. कार्तिक के महीने में वृंदावन में एक स्टेप इज इक्वल टू 100 अश्वमेध यज्ञ. You can go on walking. I don't know. Your Apple Watch will tell you आपने कितने स्टेप चल दिए. 500, 1000. अगर आपने परिक्रमा कर ली तो 10-15 हजार स्टेप्स into 100 अश्वमेध यज्ञ per step. That puts इंद्र हेवन का राजा है.
स्वर्ग के राजा की पोजीशन वन स्टेप में कवर्ड है इन वृंदावन. दिस इज कार्तिक के महीने की महीने. जैसे अगर आप भगवान को, एक्चुअली ये वो महीना है जब यशोदा मैया ने भगवान श्री कृष्ण को कमर से एक ओखल के साथ बांधा था. ओखल इज वो ग्राइंडिंग मोटर जिसमें वो दही मंथते थे. तो एक ओखल के साथ उन्होंने उनको रस्सी से बांध दिया था इसी महीने में, दिवाली वाले दिन पे, जिसके कारण भगवान का नाम हो गया दामोदर. दाम मीन्स रस्सी और उदर मीन्स पेट. तो रस्सी से उनका पेट बांध दिया था इन दिस मंथ, इसलिए दिस मंथ इज कॉल्ड दामोदर. इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल स्टोरी. एंड अभी भी वो जो ग्राइंडिंग मोटर है, वो जो ओखल है, दैट इज देयर इन गोकुल. यू कैन स्टिल गो एंड सी वही ओखल जिससे भगवान श्री कृष्ण को बांधा गया था. तो बेसिकली इस महीने में यशोदा मैया ने दामोदर को बांध दिया. इसलिए इन दिस मंथ अगर आप यशोदा दामोदर को एक दीप दिखाते हैं, एक मिट्टी का दिया दिखाते हैं, उसका फल इज इक्वल टू 1,000 दीप्स दिखाने का. वो भी अगर आपने वृंदावन आके कर लिया तो 1,000 into 100. Everything in Kartik in Vrindavan is into 100. Whatever you do. Whatever you do, like good things. Yeah, sacred, of course. Yes. I don't know if people come here and do something which is not according to our shastras, or maybe what's not right, on human level. I don't know if they do it. We don't know. See, there are all sorts of हर तरीके के बंदे, like they're everywhere. Yeah. Even if you would say कि वृंदावन है, मंदिर है, but you don't know कौन किस perspective से आया है. So the answer to your question would be, मैं जा रही हूँ, मुझे पता है मुझे क्या करना है. I don't know what's the world up to and I don't know what do they want to do. ज्यादा से ज्यादा मैं उनके लिए प्रार्थना कर सकती हूँ कि भाई everybody coming to Vrindavan, I hope and pray that they get, you know, the glimpse of Krishna or the blessing of Krishna या राधा रानी की कृपा. I can pray. बाकी the person has to act. I can act for me and I can pray for them. That is what I can do. Do you think if you're coming to Vrindavan, you can get glimpse of Krishna? Is it? Actually, glimpse of Krishna के लिए वृंदावन के आने की जरूरत नहीं है. Vrindavan is not a place. Vrindavan, as I said, is a place, is a state of mind, it is a consciousness. You can live in Delhi and create Vrindavan in Delhi. I can live wherever I live and I can create Vrindavan. That you would say not possible, not practical. कैसे कर सकते हैं? I'm telling you, आपको वृंदावन को एक्सपीरियंस करने के लिए वृंदावन आने की जरूरत नहीं है. आप, what is Vrindavan? What is Vrindavan? What do you think? For me, Vrindavan is a place, is an experience where we can see the things जो कृष्णा ने करी, जो उनके चीजें हैं. He lived the life. We can walk onto the roads where he walked. Yeah. So it's basically all related to him. Yeah. So Vrindavan is equal to Krishna. Yes. Basically, Vrindavan is equal to home of Krishna, जहाँ पे कृष्णा रहते थे या रहते हैं. So once Narad Muni asks Krishna, like वैकुंठ में जाके उनको कहते हैं कि भगवान, like I keep traveling. Narad Muni is a spaceman. He keeps going everywhere. He does not need a visa. So he just keeps going everywhere. और लोग उनसे पूछते हैं कि आप तो भगवान से मिलते होगे, so like just tell us कि last time you saw the Lord, भगवान क्या कर रहे थे, या where does the Lord live, हमको भगवान का एड्रेस चाहिए, whatever. So नारद मुनि अभी थोड़ा ऐसे कॉम्प्लेक्सिटी के साथ भगवान के पास गए और उनको कह रहे हैं कि कैन यू गिव मी लाइक एन एड्रेस. कोई मुझे पूछे कि भगवान कहाँ रहते हैं तो मैं उनको क्या बताऊंगा. So the Lord says this. These are words from the Lord's mouth. He says, Naham tishtami Vaikunthe. That means I do not live in Vaikuntha. Then he says, Yogi Nam Hridayeshua. मैं योगियों के हृदय में भी नहीं रहता. Narad Muni is very confused. किसी मैंने पूछा कहाँ रहते हो, आप कह रहे हो यहाँ नहीं रहता, वहां नहीं रहता. And then Krishna says, Yatra gayanti madbhakta. Wherever my bhakta, madbhakta, मेरे बारे में गायन कर रहे हैं, मेरे कथा कर रहे हैं, मेरा डिस्कशन कर रहे हैं, तत्र तिष्ठामि नारदा. That is where I live. So where Krishna lives is Vrindavan. और जहां आप कृष्ण के बारे में बात कर रहे हो is Vrindavan. We might not be in Vrindavan at this point, maybe, if we were not. But अगर हम भगवान के बारे में बात कर रहे हैं तो भगवान यहीं है. और क्योंकि वो यहाँ है इसलिए ये वृंदावन है. So आप जहाँ रहते हो आप वहां रह सकते हो और आप उस जगह को वृंदावन बना सकते हो, उस जगह को आप वृंदावन का एक्सपीरियंस दे सकते हो. आई लिव इन वृंदावन साल के कुछ महीने, बाकी कुछ महीने आई लिव लाइक इन माई होम टाउन. एंड आई एम टेलिंग यू, एवरी पर्सन जो मेरे घर पे आता है ना, फॉर एग्जाम्पल अ ब्लिंकेट पर्सन और the ironing guy जो कपड़े, whatever, any person who'd come to my place, we would offer them pani or something, like basic hospitality. I have heard this from n number of people. Like इतने सारे लोगों ने बोला है कि there's a different vibe in your house. There's something, कुछ तो है, आपके घर की वाइब्रेशन थोड़ी सी अलग है.
आपकी बायो में लिखा हुआ है लिविंग द भगवत लाइफ, भगवत गीता लाइफ, Yeah. राइट? कैन यू एक्सप्लेन व्हाट डज इट मीन्स? Yes. Technically, bring me back to the question. ठीक है, possibility है मैं भूल जाऊंगी because I have like a vast answer इस question के लिए. So at this point, अगर मैं किसी से पूछूं कि भगवत गीता में कितने श्लोक हैं, पता? नहीं. नहीं? Anybody in the room? I don't think. Yeah. नहीं? भगवत गीता इज अ बुक जो गीत है जो भगवान ने गाया. भगवान श्री कृष्ण ने इस गीत को कुरुक्षेत्र में गाया. अर्जुन ने सुना. हमने वो फोटो देखी है, अर्जुन रथ पे बैठे हैं, भगवान है, और तो उसके चैरेट के ऊपर एक कपी ध्वजा है. अगर किसी ने ध्यान से देखा है, बेसिकली भगवान के रथ के ऊपर हनुमान जी हैं. सो लाइक ऑल ऑफ दैट्स देयर. दैट्स भगवत गीता. और देयर इज अनदर बुक व्हिच इज कॉल्ड द भागवतम. Half of us have no idea कि भगवत गीता और भागवतम दो अलग चीजें हैं. Including me. Yeah, I know. Like most of the people out there, we have no idea, and then we say कि भाई हम तो सनातनी. What's the meaning of सनातनी? जब आपको ये नहीं पता कि भगवान ने भगवत गीता बोली है. That is a book, that is a song sung by the Lord. भगवत गीता भगवान के द्वारा गाया हुआ गीत. और भागवतम वो बुक है या वो बुक्स है. इट्स अ सेट ऑफ बुक्स, इट्स अ लॉट ऑफ बुक्स टुगेदर, जिसके अंदर भगवान के बारे में, भगवान के भक्तों के बारे में लिखा है. बीच का टर्म निकाला लोगों ने. लोग कहते हैं भागवत, हमने भागवत पढ़ी है. व्हाट इज भागवत? इट्स इधर भगवत गीता और इट्स भागवतम, इट्स श्रीमद भागवतम. सो वी हैव नो आइडिया कि हमारी बुक्स भी कौन सी हैं. और चलो जिसको पता भी है थोड़ा बहुत रामायण महाभारत, तो फिर हम कहते हैं मिथ. We say it's just Hindu mythology. Utter nonsense. I mean, I have to use this word, but it is nonsense. हमको खुद को ही नहीं पता है कि हमारा खुद का हिस्ट्री क्या है, हमारी रूट्स क्या है. एंड देन देयर आर ऑल्सो ओल्ड पीपल जिनका दायित्व है हमको समझाना कि भगवत गीता क्या है, भागवतम क्या है. वो कहते हैं कि उसने देखा है. कौन? राम जी. किसी ने लिख दिया होएगा. वी जस्ट बिलीव. 4 लोगों ने बोला, हमने मान लिया, सुन लिया. It is scientific, it has evidences, it is reality, it happened and we have no idea. हमको तो ये भी नहीं पता कि भाई कितनी कितनी बुक्स हैं और किसने लिखी हैं और क्या है उसके अंदर, and what does it want to, do with us. Krishna would feel such a failure. Like, I have to put this in such words, but अगर उन्होंने इतनी मेहनत करके अर्जुन को भगवत गीता दी है. It took 45 minutes for भगवान to complete the whole भगवत गीता. उन्होंने अर्जुन को भगवत गीता दे दी. At that point, अर्जुन के साथ भगवान थे. उसको भगवत गीता की जरूरत नहीं थी. अर्जुन ने भगवत गीता में जो भी क्वेश्चंस पूछे हैं, दे आर वेरी इंटेलेक्चुअल लेकिन ऑल्सो वेरी बेसिक. अर्जुन को उन क्वेश्चंस की भी जरूरत नहीं थी. उसके पास भगवान थे. कृष्णा मेड अर्जुन अ मीडियम ताकि अर्जुन वो क्वेश्चंस पूछ के हमारी लाइफ के आने वाले क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकें. बट हाउ इंटेलिजेंट ऑन आवर पार्ट, हम खोल के भी नहीं देख रहे. वी डोंट इवन नो एंड वी डोंट इवन केयर. हो सकता है हमारे घर पे भगवत गीता हो, पर वो लाल कपड़े में लपेट के ड्रॉर में रखने के लिए ना, वो खोल के पढ़ने के लिए थोड़ी है. एंड देयर आर ऑल्सो पीपल एंड पर्सपेक्टिव दैट हैव रीच्ड मी. भागवतम घर में रखने से घर में लड़ाई होती है. महाभारत घर में रखने से घर में लड़ाई होती है, क्योंकि वो फैमिलीज की लड़ाई के बारे में. आई वुड से आप उसको खोल के पढ़ो, लड़ाई नहीं होएगी. बंद करके रखे रहोगे, पता ही नहीं उसमें लिखा क्या, तो फिर तो जरूर लड़ाई होएगी. बिकॉज इट इज अ नेचर ऑफ दिस युगा, कली युगा. कली मतलब कलह, मतलब क्वारल. इस युग में लड़ाई होनी इनएविटेबल है. भगवान ने जो दिया उसको खोल के पढ़ के सो देखो, इट विल चेंज योर लाइफ. दैट इज व्हाई माय बायो सेज लिविंग द भगवत गीता लाइफ, लिविंग द गीता लाइफ. बिकॉज भगवत गीता में क्या लिखा है पता होगा तो इंसान उस हिसाब से अपना जीवन मोल्ड करेगा ना. एंड द लॉर्ड हैज गिवन वो बुक, वो ज्ञान, वो विज्ञान. इट्स नॉट नॉलेज, इट्स साइंस. ही हैज गिवन दैट विज्ञान जो एप्लीकेबल है for fools like us to apply, ताकि we stop crying about petty things in life. You might say कि maybe आपकी लाइफ में petty problems होंगी, मेरी problems petty नहीं है. अर्जुन की भी प्रॉब्लम पेटी नहीं थी. उसके सामने उसके टीचर्स, उसके फैमिली मेंबर्स, उसके भाई खड़े थे उसको मारने के लिए. He had like a do or die situation. That Arjun, who was so strong, he was the best of archers of the whole planet. मतलब he was so strong and so potent. उसके साथ भगवान थे. There's a point, there's a story that describes कि एक बार युधिष्ठिर महाराज कुछ होता है and he tells अर्जुन कि तुम अपना धनुष फेंक दो, तुमको बिल्कुल वो नहीं है. Like, is that what you do? That is a क्षत्रिय, जो तुम throw your धनुष. अर्जुन के धनुष का नाम गांडीव है. So युधिष्ठिर tells अर्जुन, throw your गांडीव. And अर्जुन had this व्रत कि अगर किसी ने मुझे कभी मेरा गांडीव छोड़ने के लिए बोल दिया ना, मैं उस इंसान को मार दूंगा.
दैट अर्जुन जो अपने भाई को मारने के लिए रेडी हो गया था जस्ट बिकॉज युधिष्ठिर सेड थ्रो योर गांडी, उस अर्जुन के हाथ से गांडी स्लिप हो रहा है ओनली व्हेन ही इज सीन के सामने कौन कौन खड़ा है मेरे से लड़ाई करने के लिए. एंड दैट इज द पॉइंट, दैट इज द डिफिकल्ट टर्निंग पॉइंट उसके जीवन में, जब भगवान को लगा नाउ वाज द टाइम टू लॉन्च. सॉफ्टली ही लॉन्च भगवत गीता, नॉट फॉर अर्जुन, फॉर अस. एंड अनफॉर्चुनेटली वी डोंट केयर, we really don't care until everything goes down the drain, until our jobs are losing, until हमारे loved ones भाग गए हैं, until हमको धोखा मिल गया है, until कोई scam हो गया है, तब तक we will not care of what is the Lord, कौन है, क्या दिया है उन्होंने. भगवान would feel so bad कि उन्होंने हमको सब कुछ दे दिया है, लेकिन we are looking in the different direction and trying to look for peace. It is मंद बुद्धि. Yeah. It is very dumb act. Like, I'll give you an example. एक बार एक ओल्ड मैन एक अंधेरे वाली रोड पे एक लाइट के नीचे कुछ ढूंढ रहे हैं, काफी देर से ढूंढ रहे हैं. एक पासिंग बाय लड़का छोटा सा, ही नोटिसेस कि अंकल कब से कुछ ढूंढ रहे हैं, ही गोज टू द ओल्ड गाय एंड ही सेज कि क्या हो गया अंकल, मैं हेल्प करा देता हूँ. तो अंकल कह रहे हैं कि मेरी ना रिंग गिर गई है और बहुत ऐसे इंपॉर्टेंट है, तो प्लीज मेरे साथ यहाँ पे ढूंढवा दो. तो बच्चा कहता ठीक है. अब वो दोनों अंकल एंड दैट किड दोनों मिलके वो रिंग ढूंढ रहे हैं उस लाइक अंधेरे वाली रोड पे लाइट के नीचे. काफी टाइम हो गया और बच्चा अब थोड़ा सा ऐसे इरिटेट हो रहा है कि कैसी दिखती है, कहाँ पे गिरी थी एग्जैक्टली बताओ ना, मतलब टेल मी मोर ताकि मैं ढूंढ सकूं. एंड देन द ओल्ड गाय सेज, वो बेटा वो पीछे वाले मोड़ पे गिरी थी. एंड द किड इज लाइक हेलो, उधर गिरी थी तो व्हाई आर वी वेस्टिंग आवर टाइम हियर. एंड देन द अंकल सेज, यहाँ पे लाइट चल रही है ना, यहाँ पे दिखाई दे रहा है, इसलिए हम यहाँ पे ढूंढ रहे हैं. We are finding the wrong thing in the wrong place because we don't know what's the right thing, because we don't know where to get the right thing. इसलिए my bio says living the Bhagavad Gita life or living the Gita life, because I am trying to live जो भगवान चाहते थे जिस हिसाब से हम रहे, जिसका आउटपुट you see, जिसका आउटपुट द वर्ल्ड सीज. लाइक ओनली मी ट्राइंग टू पुट थोड़ा सा एफर्ट टू फॉलो जो भगवत गीता में लिखा है. बहुत मुश्किल नहीं है. इट्स द कॉम्प्लिकेटेडनेस इन अस दैट मेक्स द थिंग कॉम्प्लिकेटेड. वो चीज कॉम्प्लिकेटेड नहीं है. भगवत गीता इज नॉट कॉम्प्लिकेटेड. इट इज लिवेबल, इट इज ईजी. भगवान को पता था किस तरीके के नमूने आने वाले हैं एंड ही गिव इट अकॉर्डिंगली. हम कोशिश नहीं कर रहे हैं क्योंकि हम वी डोंट केयर एंड दैट इज सैड, वेरी सैड फॉर अस. But it's just a matter of time. There could be people today जो बोलते हैं कि I don't believe in God, who has seen Krishna, all myth. There could be people out there जो आज ऐसा बोलते हैं. It's just a matter of time. I'm challenging. It's just a matter of time. कुछ साल रुक जाओ. Realize? They will. We will. They will. I have already realized. I will. The people in the world who say that there's no God, there's no energy, it's me, and I can, it's just the positivity, whatever. बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे, there's a million talks out there. Everybody who does not believe, जो भगवद गीता में नहीं मानते हैं, I am putting a challenge. It's a matter of time. कुछ साल या कुछ जन्म रुक जाओ. There will come a time where they will open the Bhagavad Gita, where Bhagavad Gita को पढ़ के उनका जीवन बदलेगा, and they will also go out telling the world that this is what the Bhagavad Gita says, and that is what I'm trying to do. Live the Bhagavad Gita way and give the Bhagavad Gita way. How would you define this eternal journey of yours? Our life, हमारा जो जीवन है, is like a journey from like हमारे small perspective से हमारी journey begins from the cradle till the grave. But it is way beyond. It is more eternal. The hashtag Sanatani that recently went on, uska real meaning is in the Bhagavad Gita. And I won't tell you what does it mean. You have to do it yourself. Open the Bhagavad Gita, read and understand. Or if you don't understand, अगर trigonometry नहीं समझ आ रही, so you go to a sir, you go to a teacher, sir ये नहीं समझ आ रहा है, इसको समझा दो. Why fear or why feel hesitant किसी गुरु के पास जाने के लिए? Like find the perfect person जो proper परंपरा में है, जो सही authentic चीज सिखाएंगे. उनसे जाके प्रश्न पूछो. That is what Krishna says in Bhagavad Gita. परि प्रश्नेन सेवया. Go humbly ask a question about spiritual life. जो आपको नहीं समझ आ रहा, जाइए पूछिए and learn about it. So life is like a journey and I don't want it to end at the grave. I know there's something beyond.
And that is what the Bhagavad Gita says. Like, there's no end, actually. It is eternal. We will never die, is what the Bhagavad Gita says. Because I am a soul, और आत्मा मरती नहीं है. That is also Bhagavad Gita श्लोका न हन्यते हन्यमाने शरीरे. जो सोल है उसे जलाया नहीं जा सकता, काटा नहीं जा सकता, भिगाया नहीं जा सकता. You can't squish it. You cannot damage a soul because it is eternal. And this eternal soul is on a journey back to home. Back to home. Yeah, home. Home is where? It's Home is where all miseries fade away. Home is where my father lives. Yeah. Home is where our father lives. Home is where Krishna lives. You're not talking about this body, you're talking about us. Yeah, so beyond. Also, when we talk about gurus and teachers, I think we should also talk about Premanand Maharaj. Have you ever, आपको टाइम मिला या आपको मौका मिला उनके पास जाने का, उनसे बात करने का? जी, I don't know, मुझे उसको words में put नहीं करना आएगा, but I live in Vrindavan. I haven't had the fortune of having his darshan yet. But you know, एक साधु के दर्शन से ज्यादा important उनकी वाणी को follow करना होता है. That's correct. That's the ultimate. मतलब even if मैंने उनके दर्शन नहीं किए हैं, पर वो जो बोल रहे हैं, अगर वो सही सोर्स से आ रहा है, जो वो बोल रहे हैं, अगर वो लाइफ्स को इम्पैक्ट कर रहा है, if the source is right, तो सिर्फ आप उस वाणी को भी फॉलो कर लोगे ना, that can also change your life. So I think more than the physical clicking picture of, oh, I've seen him, I've been there, I've just been around, उससे ज्यादा important उनकी इंस्ट्रक्शन को फॉलो करना है. His life is a miracle. Yeah. और वो मिराकल नहीं हो सकता अगर उनके जीवन में उस लेवल की तपस्या और साधना नहीं होती. He has had years of sadhana. And as a small spiritual person, I feel कि that's my inspiration from him. उन्होंने जिस तरीके से साधना करी है, मैं उसका एक ड्रॉप भी कर लूँ in the right direction, मतलब जो मुझे मेरे गुरु ने मंत्र दिया है, मैं उसको उनसे इंस्पिरेशन लेके उस तरीके से, like with the dedication जिस तरीके से उन्होंने साधना करी है, if I can do that, I am sure I would have his blessing and my spiritual master's blessing and the whole parampara's blessing, and my life will be a bliss, which already is. Like, there's always room for improvement. Like, there's so many अभी भी like चीजें जो मैं कर सकती हूँ जिससे I can like better my spiritual standing. But to begin with, मुझे लगता है कि उनको खुश करने का तरीका या उनकी कृपा प्राप्त करने का तरीका संतों की वाणी को अपने जीवन में उतारने से आएगा. सिर्फ रील्स देख देख के उनको सेव करके उनको लाइक करके उनको फॉरवर्ड करने से नहीं होगा. I never used to actually believe on him, प्रेमानंद जी महाराज. मतलब इतना सुना था उनके बारे में कि वो जो भी है, पर मैं ऐसे थी जस्ट लाइक एनी अदर ह्यूमन बीइंग कि नहीं, मुझे विश्वास नहीं है, बहुत सारे गुरु हैं दुनिया में, क्या ही मतलब है. दिस वाज मी. बट मैंने एक बार उनकी एकांतिक वार्तालाप सुनी एंड सडनली समथिंग क्लिक्ड इन मी एंड आई wanted to follow what he says, so I left drinking, smoking and non-veg. This is thoda sa I did. This is not thoda, this is a lot. मतलब पता होता है जब when we're buying the smoking वाला what's that called, cigarette, the cigarette box, it says this kills, लेकिन वो इंसान खुद को मारने के लिए रेडी है. Like even if we know कि ये सही नहीं है, the impetus is so strong कि we just impelled to do something which is not right. So you saying that you're leaving this is not a small thing. It's a very big thing. आप खुद को credit दीजिए because you deserve it. And I mean, I think इस conversation से we could also be inspiring people out there जो शायद ये चीजें कर रहे हैं, to them that there is a hope for you और you have to do it. आपको ही करना पड़ेगा. मतलब आप एक तरफ आप संतों को देख रहे हैं, आप भक्ति आप सुकून चाहते हैं, पहाड़ों में जाके सुकून मिल रहा होता तो पूरी हमारे ख्याल पहाड़ों पे जाने वाले हैं, लेकिन हालात पहाड़ों से कूदने वाले हैं. हाँ, that's true. All of us we think कि सुकून उधर जाके मिल जाएगा या कहीं शांत जगह पे जाके मिल जाएगा, पर सुकून बाहर नहीं है, सुकून अंदर. अगर अंदर ही नहीं है तो बाहर कुछ भी हो जाए नहीं मिलेगा. You have to choose your सुकून. And choosing सुकून would also mean leaving things जो आपको सुकून से दूर लेके जाते हैं. So I'm very proud of you that you've left things that you just mentioned. When I was a non-vegetarian, I used to give this, क्या कहते हैं उसको? तर्क. Yes. How did you know? तर्क ना. So I used to give this तर्क कि जो vegetarian है ना, वो भी पत्ते खा रहे हैं और पत्ते ना living होते हैं.
So गाय भी तो पत्ते खाती. So I used to give this turk just to defend what I was doing, killing a living and then eating. So and there are so many people like me doing it still. How do you take this whole conversation if it's happening in front of you? अगर कोई मुझसे कहे कि देखो मैं चिकन खा रहा हूँ और तुम पत्ते खा रहे हो, तुम भी तो मार रहे हो, मैं भी तो मार रही हूँ, सो इज इट नॉट द सेम? और एक और बहुत एविडेंट चीज जो लोग कहते हैं, प्रोटीन कहाँ से मिलेगा फिर? I'll talk about me. 25 years of my life मैंने नॉनवेज नहीं खाया है. Do I look protein deficient? No. You look very charming. There's a different charm on your face. हम अपनी टंग की अर्ज को या अपने टेस्ट बर्ड्स को सेटिस्फाई करने के लिए किसी को मारने के लिए रेडी हैं. वी आर पुटिंग उस मरे हुए एनिमल की डेड बॉडी इनसाइड आवर बॉडी, जिससे हमारा बॉडी एक ग्रेवयार्ड बनता है टेक्निकली. और वो ग्रेवयार्ड बनने के बाद हमारे में वो एरोगेंस भी है कि तुम भी तो मार रहे हो ना, यू आर ऑल्सो किलिंग एंड ईटिंग अ प्लांट, दैट इज ऑल्सो पाप और वट एवर. यू सी द डिफरेंस ऑफ हार्म दैट वी आर कॉजिंग. इसका मतलब ये नहीं है कि प्लांट्स को मारने से पाप नहीं लगेगा, लगेगा. कृष्ण से भगवद गीता, हर एक्शन का रिएक्शन तो मिलेगा. अगर आप प्लांट्स को भी मार के खा रहे हो ना, उसका भी पाप फल तो लगेगा. सो नाउ व्हाट्स द लाइक वे आउट? बीच का रास्ता क्या है? That is also what Krishna says in Bhagavad Gita. Whatever you are eating, whatever you are trying to consume, because you have to eat, खाना तो पड़ेगा ही ना, to sustain. और आप जो भी खा रहे हो, अगर आप उसको भगवान से कनेक्ट करते हो, अब वो कैसे करेंगे? मैं अपने खाने को भगवान से कैसे कनेक्ट करूं? जो आप खा रहे हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल इट हैज टू बी सात्विक, इट कैन नॉट बी ऑब्नॉक्शियस चीजें. आप जो खा रहे हैं, अगर आप उसको सही इंटेंशन से और सही प्योरिटी, फिजिकल प्योरिटी से बनाते हैं, और फिर आप उसको भगवान को भोग लगाते हैं तुलसी डाल के, उसमें विदाउट तुलसी भगवान कुछ एक्सेप्ट नहीं करते, ना इंसान ना खाना. अगर आपने उसमें तुलसी डाली और अगर आपने उसको भगवान को ऑफर कर दिया है, फिर आप उसको खा रहे हैं, तो भगवान कह रहे हैं कि मैंने उस खाने का पाप मैंने खा लिया. ही ईट्स द पाप फ्रॉम दैट फूड. ओके. अगर आप बिना भोग लगा कर खा रहे हैं तो आप पाप खा रहे हैं. दैट इज व्हाट भगवद गीता सेज. सो आई कैन बी ईटिंग ऑल वीगन फूड, लेकिन अगर वो भगवान को ऑफर्ड नहीं है तो मैं पाप ही कर रही हूँ और मैं पाप ही खा रही हूँ. सो ये है वो सोल्यूशन कि वट एवर आई वॉन्ट ईट, आई वट एवर सात्विक वट एवर नहीं, जो भी सात्विक चीज मैं खाना चाहती हूँ या खा रही हूँ, मैं उसे भगवान को ऑफर करूँ और फिर खाऊं. दिस इज लाइक लोएस्ट ऑफ लेवल्स, लाइक ऑलमोस्ट लो, क्योंकि आर मेन पर्सपेक्टिव इज मुझे खाना है तो मैं भगवान को भोग लगाऊं. नहीं, मैं भगवान को भोग लगा रही हूँ और उन्होंने जो खाया वो मैं खाऊंगी. दैट्स द अल्टीमेट लेवल जहां पे हमको पहुंचना है. बट बिगनिंग स्मॉल इज गुड. लाइक एट दिस पॉइंट आई वुड वांट टू से कि अगर आप नॉनवेज नहीं खाओगे तो आप प्रोटीन की डेफिशिएंसी से मर नहीं जाओगे. हैव यू सीन लाइक अ हिपोपोटामस और like a rhino or you know, like big animal, elephant, what do they eat? Non-veg? No. They are all mammals and they are all eating घास फूस. जब घास खा के हाथी में इतनी ताकत है, तो stop justifying your wrong acts. I can tell you, like I have friends and I know people who are weightlifters and natural bodybuilders, जिन्होंने ना कभी steroids लिए हैं, ना कभी non-veg खाया, and they are good. They are much better compared to all those people जो सिर्फ अपने टेस्ट बर्ड्स के लिए जानवरों को मारने के लिए रेडी हो जाते हैं. यू से कि जानवरों को खाने से प्रोटीन मिलेगा, ठीक है, मुर्गी से प्रोटीन मिल रहा है, मुर्गी क्या खा रही है, उसको कहाँ से मिला प्रोटीन? We don't see it like this. We just want to satisfy our need. And then there's also one perspective जहाँ लोग कहते हैं हम नहीं खाएंगे तो मुर्गी बढ़ जाएगी ना. That's going on in somebody's head, जहाँ पे हम कह रहे हैं कि I am the doer ना, मेरे कारण ही तो इकोसिस्टम सही चल रहा है. मैं नहीं खाऊंगा तो इकोसिस्टम खराब हो जाएगा. भगवान ऐसे व्यक्ति के लिए भगवद गीता में कह रहे हैं, अहंकार विमूढ़ आत्मा. अहंकार ईगो से भरा हुआ, विमूढ़ बेवकूफ आत्मा, इंसान. ये वो इंसान है जिसको लगता है कि मेरे कारण सब सही हो रहा है. कर्ता अहम इति मन्यते, मतलब भगवान कह रहे हैं इस इंसान को लग रहा है कि इसके कारण ही सब सही चल रहा है, ये थोड़ा सा इधर उधर हो जाएगा तो खराब हो जाएगा. लाइक ऑनेस्टली सर, इफ यू डाई टुडे, 15 days later maybe your family remembers you. 50 years later शायद nobody would know your name. 100 years later who are you? और आज तुमको लग रहा है कि तुम्हारे कारण ecosystem is in the right place. Wake up. अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं कि आप गोल्ड की रस्सी से बंधना चाहोगे कि आप चांदी का रेट बहुत बढ़ गया, चांदी की रस्सी से बंधना चाहोगे कि लोहे की रस्सी से बंधना चाहोगे? what would you choose? Gold. You would choose gold. I would say बंधना क्यों है? Satoguna is the gold की chain.
उससे बंधना इज ओके, फेयर इनफ, बट आफ्टर ऑल तो आप बंध गए हो ना. आई वुड से कि मुझे बंधना ही नहीं है. सो वेन यू से कि आपको तामसिक और राजसिक खाने को सात्विक करना है, इट स्टिल विल टाई यू. एंड दैट इज वेयर आई सेड कि आप उसको भोग लगाओगे और फिर खाओगे तो फिर वो इन तीनों गुणों से ऊपर हो जाएगा. टेल यू, मैं लजानिया बना सकती हूँ, मैं पिज्जा बना सकती हूँ, मैं पास्ता बना सकती हूँ, मैं पानी पूरी बना सकती हूँ, पाव भाजी, नेम इट, आई कैन मेक इट ऑल. और ऐसा नहीं है कि इन चीजों को खा के लगेगा कि यार ये क्या खाया है, क्यों खाया, इससे बेटर तो नहीं ही खाते. ऐसा नहीं है कि उसमें टेस्ट नहीं. आई वुड से कि जो बाहर आपको मंचूरियन मिलेगा उससे टेस्टी चाइनीज आई कैन मेक एट होम. क्यों टेस्टी? क्योंकि भगवान ने खाया ना. ही एड्स ऑन टू द टेस्ट. मैंने अपने तरीके से जो डालना था डाल दिया, पर जो फाइनल एसेंस और टेस्ट, जो वाइटैलिटी है, वो भगवान उसमें ऐड कर देते हैं, फिर उसका भोग लगाया है. एनीथिंग यू ईट कैन बी मेड सात्विक. ऑफ कोर्स उसके अंदर वो obnoxious इंग्रेडिएंट्स एडेड नहीं है. प्लस आपकी कॉन्शियसनेस बहुत बहुत प्यारी सी है क्योंकि आपने उसको भगवान को भोग लगाना है. सो आप उसको बनाते बनाते उसमें से खा नहीं रहे हैं. बिकॉज मोस्ट ऑफ अस इन द किचन वी डू दैट. हम कड़छी में से खा लेते हैं, हम कढ़ाई में से खा लेते हैं. जब हम कढ़ाई में से खाते हैं ये देसे, या जब हम सर्विंग स्पून में से खाते हैं, तो आपने जितनी बार खाया उतनी बार नरक जाना पड़ेगा. अन्न का वेसल है, उसमें से भगवान खा सकते हैं, आप नहीं खा सकते. इफ यू वांट टू ईट तो आप उसको अपने उसमें डाल के आप खा सकते हैं. पर उसमें भी टेक्निकलिटी है. लाइक दैट इज हाउ आई वाज ग्रोन कि आप नमक भी टेस्ट चेक नहीं करते हो. मतलब व्हेन यू आर मेकिंग द प्रेपरेशन, आप इस इंटेंसिटी से या इस इंटेंशन से बना रहे हो कि ये तो ठाकुर जी के लिए है, तो ठाकुर जी अपने हिसाब से उसमें नमक डलवा लेते हैं. कम तो कम, मे बी ही वांटेड टू ईट लेस. ज्यादा तो ज्यादा इट्स यूजुअली नॉट सो बैड. लाइक आज तक जब तक मैंने, वेन एवर आई हैव कुक्ड, आई डोंट टेस्ट, ना ही आई टेस्ट. और वो हमेशा सही निकलता है क्योंकि कृष्णा जस्ट एड्स ऑन और सब ब्रैक्स अगर ऊपर नीचे हो जाता है तो. So you believe everything which is happening will happen, is happening, will happen, is because of Krishna. Krishna is there every minute, every second of your life. How it actually came? क्या आप शुरू से ऐसे थे? Krishna made me, he made you also, and he made everybody else who's watching this video. So he made us in the most perfect way. हमको लग सकता है that our tooth is extra, और हमको लग सकता है that we, ऐसा होता तो शायद ज्यादा अच्छा होता. मेरे भी थोड़े लंबे बाल होते और I would look as good as Alia Bhatt or whatever. Like हमको लगता है ये होता वो होता, but Krishna made me the way I am, and he's a perfect designer, so I'm the perfect masterpiece that he created, and I have to accept that. So that's one point. दूसरा, you said के how did it happen, or like is he there, like how do I believe in it. मुझे ऐसा लगता है कि मेरे believe करने से या ना believe, like मैं क्या सोचती हूँ उससे कोई फर्क नहीं पड़ता. Krishna is, was and will be always in control and always there. That's what makes him the Lord. The first shloka of Bhagavatam says this thing, like it's a like long Vedanta Sutra verse hai wo, but it says the same thing, that Krishna is in full control. He's all cognizant, and that is what makes him the Lord. मतलब वो परम ईश्वर भगवान है, सत्यम परम. He is the major Lord, like he is the one. So मेरे मानने या ना मानने से कोई फर्क नहीं पड़ता. आई वॉज मेंशनिंग अर्लियर, अगर रूम की लाइट बंद है और एक इंसान रूम में बैठा हुआ है और अंधेरा है रूम में, और वो कह रहा है कि सन तो होता ही नहीं है, सूरज तो होता ही नहीं है, साइंस की टीचर ने पता नहीं क्या पढ़ाया है, देयर इज नो सन. दिस इग्नोरेंट बंदा इनसाइड द रूम इज सेइंग देयर इज नो सन, देयर इज नो सन, देयर इज नो सन. उसके बोलने से सन की एग्जिस्टेंस पे क्वेश्चन पड़ सकता है? नहीं, बिकॉज द सन इज देयर. मैं मान रही हूँ कि नहीं मान रही हूँ इज अ मैटर ऑफ टाइम. खिड़की खुलेगी, मैं बाहर जाऊंगी, और इवेंचुअली मैं मान लूंगी. अब खिड़की खुलने में और बाहर जाने में कुछ घंटे, कुछ साल, कुछ जन्म भी लग सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन हर बंदे की क्या जर्नी है और कितना टाइम अभी उनको और लगना है. बट एट द एंड everybody has to go back to home. And how did I end up being here, or how am I like the way I am? I was very young जब मुझे इस चीज से इंट्रोड्यूस किया गया नहीं था. इट वॉज जस्ट अ पार्ट ऑफ माई लाइफ. लाइक आई वॉज टोल्ड दैट वी लाइक गोइंग टू द टेम्पल बिकॉज भगवान जी मंदिर में रहते हैं और भगवान जी अच्छे होते हैं, इसलिए हम हर संडे मंदिर जाएंगे. मैंने कहा ठीक है चलेंगे. अब हर संडे मंदिर जा जाके आई मेड फ्रेंड्स इन द टेम्पल. एंड किसको फ्रेंड्स नहीं पसंद है? सो आई मेड फ्रेंड्स जिनको भी भगवान पसंद थे. समझो, लाइक इट वाज सो सिंपल. आई वाज 7 years old एंड फ्रेंड्स वाज व्हाट वाज इम्पोर्टेंट फॉर मी एट दैट पॉइंट. और मुझे इस तरीके के फ्रेंड्स मिले जिनका सेम थिंकिंग प्रोसेस था, जिनकी फैमिली सेम बैकग्राउंड से थी. दे वर इंट्रोड्यूस्ड
to bhakti, with the concept of spirituality from that age. So I grew in that atmosphere. फिर उसके बाद this question comes के फिर तो आपने चूज नहीं किया, आपको तो ऐसे थाली में सजा सजाया मिल गया, और फिर why do you value it now? आपने छोड़ क्यों नहीं दिया, या आपने दूसरी तरफ की दुनिया देखी ही नहीं है, तो फिर आप ज्ञान मत ही दो क्योंकि आपको पता ही नहीं है उस तरफ क्या होता है. Like all such questions would come in everybody's brain watching. But क्योंकि I live in a normal world, I went to a normal school, मैंने काम किया है, I've gone to a normal working space, मैंने मटीरियलिस्टिक लोग या नॉर्मल लोगों के साथ डील इंटरैक्ट किया है, और उनसे इंटरैक्ट करके तो मुझे और विश्वास हो गया कि व्हाट आई डिड वाज द बेस्ट मैन. आई मीन आई वुड हैव एंडेड अप इन अ सिचुएशन लाइक दैट, फसी, इरिटेटेड, ऑलवेज एंग्शियस. आई एम सो गुड कि मैंने बचपन में ये डिसीजन लिया. नॉट दैट मेरे पास चॉइस नहीं था, मेरी मम्मी ने मुझे समझाया, बेटा इफ यू ईट प्याज लहसन दिस इज द कॉन्सिक्वेंस, एंड इफ यू डोंट ईट दिस इज द कॉन्सिक्वेंस. अगर आप कुछ खाते हो तो आप उसको भगवान को भोग लगा के खाओ. आई वॉज टोल्ड इन माई चाइल्डहुड, नॉट फोर्स्ड कि नहीं खाना. आई एम गेटिंग इन्वाइटेड टू अ किड्स बर्थडे पार्टी, आई एम अ किड, एवरीबडी इज ईटिंग चिप्स, आई नो उसमें प्याज है और मुझे पता है मैं नहीं खा सकती, पर फिर भी like I'd confess I would have eaten once or twice, but the guilt that I had कि I knew the consequence and I still did it. Even today I feel why did I do it, and I chose, मैंने choose किया है कि I don't want to live the ordinary life जो सब जी रहे हैं, क्योंकि the end is misery. Yeah. Somehow भगवान की कृपा से सही टाइम पे मैंने वो डिसीजन ले लिया. नॉट दैट मैंने दूसरा पार्ट ऑफ द वर्ल्ड एक्सप्लोर ही नहीं किया या देखा ही नहीं. आई हैड फ्रेंड्स, I would say had friends. I don't have those friends now because they chose a part of life that they wanted to choose, and वो मेरे साथ align नहीं किया. Yeah. तो I chose not, I did not stick to वो friends जो बचपन के friends. I chose to the ethics जो मेरे माँ बाप ने मुझे दिए, जिसके कारण I am where I am and I don't know where are they, and I pray that wherever they are at least they have the peace of mind to sleep peacefully at night. Like because at this point of time I was just telling you, आज से कुछ टाइम पहले देख लें, जब हम स्कूल में थे तो स्कूल में काउंसलर नहीं होते थे. लाइक देवर नो स्पेशल रूम्स के इस बच्चे की काउंसलिंग हो रही है, भाई नहीं होता था. हमारे टाइम पे होता था एक फोन मम्मी को करेंगे, सारी काउंसलिंग वो सुन के ही हो जाती थी कि नहीं मम्मी को पता चल जाएगा, रिमार्क मिल जाएगा. सो मेनी रिमार्क्स इन माय स्कूल. हमारे इट साउंड्स लाइक हमारा टाइम, नॉट टू. और थोड़ा पीछे चले जाए तो किसी को नहीं पता डिप्रेशन क्या होता है, एंजाइटी क्या होती है. नोबडी हैड नो आइडिया. टुडे 4th स्टैंडर्ड का बच्चे को डिप्रेशन हो रहा है और वो काउंसलर के पास बैठ के अपनी थेरेपिस्ट दुख, yeah, they're describing what went wrong. You're in 4th standard. What could go wrong? Yeah. You lost a rubber or a pencil. I mean, हो सकता है something really went wrong, but we have normalized anxiety, depression, overthinking इतना ज्यादा that it wasn't ever there. Yeah. और आज भी I think it's a choice that we are making. Oh no, I choose to be in depression, or I want to be with my misery and then keep crying about the misery. No, make an action. Wake up in the morning to कल सुबह उठो और tell कि नहीं आज I don't want to be sad today. I'll do 1 आरती in the morning, या मैं 10 मिनट मेडिटेशन करूंगी, या I'll touch तुलसी. तुलसी को टच करने से इंसान की नेगेटिविटी चली जाती है. तुलसी इज सो पावरफुल. ऐसा कहते हैं जिसके घर में तुलसी है उसके घर के आसपास भी यमदूत यमराज नहीं आ सकता. इसलिए भगवान को इतनी प्रिय है कि भगवान ने तुलसी को अपने खुद का नाम दे दिया है. तुलसी का एक नाम है माधव तोषिनी या माधव प्रियसी. तुलसी इज सो डियर टू कृष्णा के वैकुंठ में जो लक्ष्मियां रहती हैं, अकॉर्डिंग टू आवर शास्त्र, मैं नहीं कह रही, मेरी मम्मी ने मुझे कहा इसलिए नहीं कह रही, शास्त्रों में लिखा है. लक्ष्मी भगवान विष्णु से कहती हैं कि आउट ऑफ एवरीबडी इन द वर्ल्ड मुझे एक इंसान से जेलसी है. एंड विष्णु लाइक Lakshmi has a jealousy problem. We need to talk. How come? Lakshmi, everybody, सबको लक्ष्मी चाहिए. You have a problem. How come? Yeah. And Krishna is asking who? And she says Tulsi. And Krishna is confused. Wait, what? Explain. Hello, Parpat. And then Lakshmi says कि मुझे ना आपके चरणों को छोड़ के जाना पड़ता है जब मुझे मेरे भक्त बुलाते हैं. Like they do all the Lakshmi pujas and everything. And मुझे जाना पड़ता है. Tulsi never leaves your feet. Yeah. She is so fortunate कि वो हमेशा भगवान के चरणों में होती है. I just mentioned in the podcast कि भगवान तुलसी के बिना ना खाना एक्सेप्ट करते हैं ना इंसान. If you're not wearing a tulsi kanthi in your neck, and just in case if you die, which we all have to, मरना ही है. अगर मर गए बिना तुलसी कंठी पहने हुए तो
पॉसिबिलिटी है कि यमलोक से यमराज यमदूत आएंगे, लेकिन अगर आपने तुलसी कंठी पहनी है, आई वाज जस्ट सेइंग, अगर आप तुलसी को हाथ लगाते हैं आपकी नेगेटिविटी चली जाती है। आपने तुलसी माला पहन ही ली, जैसे अगर आपने तुलसी माला पहनी है और आप स्नान कर रहे हो, आपकी कंठ से नीचे जो भी पानी जा रहा है दैट इज ऑल गंगा जल। अगर आपने तुलसी माला पहनी है, नहीं पहनी है और आप कुछ खा रहे हो, शास्त्रों में लिखा है, ठीक है, मैं कॉन्कॉर्ड नहीं कर रही हूँ अपने दिमाग से, अगर आपने कंठी नहीं पहनी है and you're eating something that is equivalent to eating stool. अगर आपने कंठी नहीं पहनी है और आप कुछ पी रहे हो that is equivalent to drinking liquor. मुझे याद है my कंठी broke, और कंठी भी ना ऐसे नहीं टूटती, there are reasons for a कंठी to break. You ate something wrong or you thought something, आपने किसी के लिए, it has reasons, it just does not break like that. So somehow my कंठी broke, और yeah, that just reminds me how you were asking कि मैं कैसे इस zone में हूँ. My mummy, when she was 4 years or 3 years old, उनकी जो दादी थी वो तुलसी कंठी पहना करती थी, और मेरी मम्मी को बहुत सुंदर दिखता, like she would think this is so pretty, और mama would say कि मुझे भी पहननी है, and then mama would also wear a tulsi kanthi, and at that point of time like there was non-veg prevalent in our family, और मम्मा आज बोलती है कि अगर मैंने आज तुलसी कंठी पहनी है और मैंने 2 दिन बाद नॉनवेज खाया, my कंठी would break. And then I would fix it and I would wear it again क्योंकि मुझे बहुत अच्छी लगती थी. But then when I would eat something wrong again, it would break again. It's a sign from the Lord. ऐसे ही नहीं टूटती है, अगर वो टूटी है तो something has gone wrong on our end जिसके कारण वो टूटी है. So I was saying कि my kanthi broke once and I just told my mother, क्योंकि we always have a spare kanthi, like it's just always there just in case अगर किसी को चाहिए हो, because your neck should not go without kanthi. So like it's just there in the drawer, and I told मेरी मम्मी को कि मैं इसको उतारती हूँ, आप बोल ले आओ, like मैं इसको फटाफट चेंज कर लेती हूँ. And then she just told me hold on, and she brought the new कंठी, and मैंने मुझे वो कंठी पिनाई और फिर पुरानी टूटी हुई कंठी उतारी, and I was like same thing, I was saving time. She said no, एक सेकंड के लिए भी, even for a small second, आपका neck without कंठी नहीं होना चाहिए. What if you die in that second? I'm like wow. तुलसी इज सो स्ट्रॉन्ग, तुलसी भगवान को इतनी ज्यादा प्रिय है, इतनी ज्यादा प्रिय दैट इट कैन रियली अपलिफ्ट एंड चेंज योर लाइफ. क्यों है फिर? Because she is a devotee of the Lord. She's always in the service of the Lord. हम ना भगवान को अपनी कन्वीनियंस से पूजते हैं. कार्तिक है तो चलो परिक्रमा कर लेते हैं, थोड़ा हमको फायदा मिलेगा. कार्तिक है दीप दिखा लेते हैं, it will be good for us. Tulsi is not like that. She's loving Krishna and serving Krishna without motivation and without interruption. अहेतु की भक्ति कहते हैं इसको जो तुलसी कर रही है. She's setting an example for us to follow. She's always at the service of the Lord. And that is what Krishna wants from us. Tulsi is the plant, but her form in the spiritual world, जो भगवान जहाँ रहते हैं, she's called Vrinda. And she takes care of everything. मतलब वृंदावन में it's a less known of a place. It's called Vrinda Kund. नंदगांव के पास है. That is a serene place. आप वहां कभी भी चले जाओ, there are so many parrots there. I like no, not a lot of people have talked about this. लेकिन वृंदावन के जो parrots है ना, if you have noticed, they're not simple or just parrots. वृंदावन के parrots are messengers of Radha Rani. As soon as something कुछ हो रहा है वृंदावन में, these parrots they notice. They go and they tell everything to Radha Rani. That is how she knows वृंदावन में क्या क्या हो रहा है, through her parrots. And these parrots are controlled by वृंदा देवी. तो जिस जगह की मैं बारे में आपको बता रही थी जो नंदगांव के पास है, it's called the वृंदा कुंड. वहां पर always there are lakhs of parrots. मतलब आप चले जाओ, there's not one second जब आपको parrot की आवाज नहीं सुनाई देगी, because it's the वृंदा कुंड, वहां वृंदा देवी रहती है, and her pet is a parrot. Okay. So because of her pet being a parrot, वृंदावन के सारे parrots are always there, and talking and updating of what's happening in Krishna Leela at this point and who has come to Vrindavan. So next time आप वृंदावन आओ और आपको एक पैरट उड़ता हुआ दिख जाए तो उसको just shout out at the parrot कि मैं I have come, tell Radha Rani कि I have come, give me कृपा, let me understand धाम क्या है, let me understand उनकी सेवा कैसे करनी है, and you will see a change. You were telling me कि आपने बचपन में कैसे चूज किया. So yes, there have been times जब ऐसा नहीं है कि it was a beautiful थाली served to me कि बेटा खा लो.
I chose. Yeah. I chose the wrong thing. I learned. I made a mistake. पर फिर I decided कि नहीं, I don't want to end up like the world is ending up, which is sad. Very, very sad. Yeah. अगर हम अपने जीवन में भगवान को ऐड कर लेते हैं, तो all positivity, all सुकून, all शांति already comes. What I want is eternal. Yeah. और वो भगवान दे सकते हैं. वो व्हाट्सएप पे स्टेटस लगा के 4 लोगों के से समथिंग वेंट रॉन्ग करके नहीं मिलेगा. इवन इफ 10 लोग आपको कंसोल कर ले, सिंपैथी दे दे, कुछ फर्क नहीं पड़ता. How does it matter? So I want you to tell everybody, as a grahast person who is living and thinking to have a grahasti, living in a like normal environment, घर चलाना है, काम करना है, how they can do their bhakti, their puja, and how are you managing everything with content creation? I don't know. Do I look like a sadhvi? Yes, I do. Yeah. Seriously? Yeah. I've got tattoos and I wear like a fancy sari and I do like beautiful braids. I'm wearing like gold jewelry. Do I still look like a sadhvi? No, now there's a different zone for me to look at you. हाँ, हो सकता है लोगों को लगेगा कि मेरा तो एटमॉस्फेयर ही ऐसा है, या मेरे लिए इट्स इजी टू डू भक्ति, और मुझे पैसे नहीं कमाने पड़ रहे हैं, या मेरे लिए स्ट्रेस नहीं है, या व्हाटएवर. इट्स नॉट लाइक दैट. आई लिव इन द सेम वर्ल्ड एज यू. हम सेम प्लैनेट पे रह रहे हैं, अर्थ. हम इंडिया में, आई एम लिविंग इन इंडिया, लाइक a lot of you might be watching from outside, whatever. I am living in the same planet as you and I have the same difficulties as you. Yeah. मेरे लिए भी उतनी पॉल्यूशन है हवा में जितनी आपके लिए है. मेरे बाल भी उतने फ्रिजी और हेयर फॉल हो रहे हैं जितने आपके हो रहे हैं. इट्स द सेम, इट्स द सेम. मुझे बस ऐसा लगता है दैट इज द वे ऑफ लाइफस्टाइल जो मैंने चूज करने की कोशिश की है, जिसमें मैंने कुछ छोड़ने की कोशिश नहीं करी है. मैंने आर्टिफिशियली भक्ति को बढ़ाने की या आर्टिफिशियली खुद को स्पिरिचुअल दिखाने की या करने की कोशिश की. इट्स जस्ट अ वे ऑफ लाइफ दैट आई ट्राइड टू अडेप्ट, जिसके कारण देयर इज अ डिफरेंस इन मी दैट आई नो एंड other people of the world. Now you would say okay, you're doing content creation and what do you see as a future? Are you planning to be a grihast sadhvi / whatever? And what background do you come from? So I have studied master's psychology, bachelor's literature, digital marketing, graphic designing, video editing. I've worked as a graphic designer, video editor, animator for 5 years. And I chose to do this. अब this का क्या मतलब होता है? मैंने अपना प्रोफेशन कंटेंट क्रिएशन बनाया? नहीं, इट्स नॉट माई प्रोफेशन. कंटेंट क्रिएशन भी नहीं कहती मैं. आई डोंट इवन कॉल इट कंटेंट क्रिएशन, आई कॉल इट प्रीचिंग. मैं आई पुट इट इन वर्ड्स. मैं अपने गुरु के इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करने की कोशिश कर रही हूँ. आई एम नॉट अ कंटेंट क्रिएटर. मैं सिर्फ कंटेंट कॉपी कर रही हूँ भगवद गीता में से. कंटेंट्स देयर, द लॉर्ड गेव इट. प्रभुपाद जी इज अ ग्रेट आचार्य जिन्होंने उस पर कमेंट्रीज दी हैं ताकि हम जैसे लेमैन को वो समझ आए. I'm just copying the content from the OG content creator, which is the Lord himself. He is the creator of the whole verse. आप content ही बात कर रहे हो. Yeah. So I am just taking the content from there and I don't take this as a profession. I don't take deals that come on Instagram, which do. I do not aim to get money out of this thing because इस goal से शुरू नहीं किया था. इस इम्पेटस से या इस आशा से शुरू किया था कि किसी एक इंसान का भी जीवन अगर बदलता है, अगर उसको एक रात को भी सुकून वाली शांति से नींद आती है आफ्टर हियरिंग व्हाट आई हैव टू से, या अगर कोई एक व्यक्ति भी मेरे कारण भगवद गीता खरीद लेता है, पढ़ लेता है, कोशिश कर लेता है या कंठी पहन लेता है, दैट्स अ सक्सेस टू मी. And I see people changing and I see people coming to me and telling me, I saw your sister's wedding wala pura video and it was beautiful. I see the impact जो create हो रहा है and this is because I am trying to follow the instructions और वो instruction को follow करने की empowerment भी instructions के साथ आई थी. So that's how it's happening. At this point, I am not unpad and I am not somebody who cannot work and make my living. I can earn money. मुझे आता है करना, मैंने किया है past में. At this point मैं choose नहीं कर रही हूँ करना because I don't think it's a necessity. Fortunately, my parents are providing and in future we'll find a husband who's providing. I would want like मुझे लगता है इस पे विवाद हो सकता है कि for this perspective of mine कि we are so talented. Yeah. हम इतने capable हैं
कि हम सब कुछ कर सकते हैं एंड सब कुछ मतलब हम घर का ध्यान भी रख सकते हैं, हम काम भी कर सकते हैं, वी कैन ऑल्सो स्पिरिचुअली डू आवर सेल्व्स। और ऐसे कहते हैं कि घर को घर घर नहीं बनाता, दीवारों से नहीं बनता, गृहिणी से घर बनता है। एंड दैट गृहिणी अनफॉर्चुनेटली टुडे गर्ल्स डोंट वांट टू बी, उनको लगता है कि आई डोंट वांट टू बी कन्फाइंड एट होम। होम मेकर, या वो फैंसी टर्म अब दे दिया लोगों ने, बट लाइक इवन टुडे girls think कि we are equivalent to men. I would say you are greater than men. You can do so much more. You're so much more capable. That there is a divine Shakti in you that Krishna has given you that can make you do so many more things. So like there's no comparison. क्यों करना है ना compare किसी और के साथ? But what my point is, at this point मुझे नहीं लगता कोई लड़की aspire कर रही है कि मुझे ना गृहिणी बनना है। मुझे I wanna educate myself, I wanna capable myself कि मैं पैसे भी कमा सकती हूँ, but my aim is to get married, to have children, to have a home. I don't think today most of the women are aiming in that way, because we are all aiming at, I want to do this, ambitions, which is nice. But we forget that being girls, we also have a very beautiful chance कि हम अपने साथ साथ और 4 लोगों का जीवन सुधार सकते हैं, जो शायद men can't do, like in a family way. Yeah. We have that opportunity and grace by the Lord that we can do it much more better. मकान को घर बना सकते हैं. Yes. But I believe, also self-experienced, if we are sitting at home, working for home, making it a घर, कोई आ रहा है खाना बना के दे रहे हो, living like the way लड़कियों को ऐसे बोला जाता था पहले, रहते थे, जो भी है, you're not respected that much. Yeah. That's the problem of the world. I respect me. I know me. मुझे अपना caliber पता है. मैं नहीं कह रही हूँ कि just leave everything, be at home. I'm not saying you choose what you want to do. I am telling you what I want to imply in my life. I am educated. I can make money. I have made money in the past. At this point, I am an influence on people, and I want to use that influence in the right direction. Yes. Not for getting fame and money and recognition out of it, but for changing people's lives. And I'm trying my best to be there. ये सब करने के लिए what requires in the background is my sadhana, which I also do. In the future, I also plan to getting married, having children, having a beautiful life, raising those children in bhakti, ताकि वो भी same चीज कर सके और लोगों को impact कर सके. Now you would say practically how am I supposed to, like, what do I do out of it? That's your life. Yeah. And you have the facility to not care about the money, but I have to think about the money. Somebody would have this perspective. Nobody is telling you to leave your work. Arjun was a family man. उसने कहा भगवान मैं जा रहा हूँ, मेरे से नहीं लड़ाई होती, मैं जंगल में जा रहा हूँ, मैं साधु बन जाऊंगा. भगवान is like, no, you cannot abandon your dharma. Your dharma as a kshatriya is to fight. तो अर्जुन कह रहा था बाय बाय, भगवान कह रहे थे इधर खड़े रहो, चुप करके लड़ाई करो. लाइक कृष्णा gave him पूरा भगवद गीता, लास्ट में बोला कि अब कर लो क्या करना है. कृष्णा नेवर टाइड हिम कि यही करना पड़ेगा. कृष्णा ने पूरा भगवद गीता बोलने के बाद लास्ट में बोला कि नाउ यू चूज, तुमको क्या करना है. एंड देन अर्जुन सेज नो, आई विल सबमिट, आप मेरे गुरु और आप जो बोलोगे मैं वो करूंगा. सो I am not saying कि आप अपनी responsibilities छोड़ दो. I would also not leave my responsibilities, and I am never propagating or telling कि आपको भी अपनी responsibilities छोड़ देनी चाहिए और जिस तरह भक्ति कर लो whatever. Bhakti is not subtracting anything. This is the first reel that I ever made. What I'm going to say now. अगर आपके पास एक बहुत बड़ी गाड़ी है, that's like a zero. तो आपके पास 3-4 डिग्रियां है, PhD है, another zero. बड़ी सुंदर सी गर्लफ्रेंड या हैंडसम सा बॉयफ्रेंड है, 1 more zero. If you have like a big mansion, 1 more zero. You're very successful, a lot of money in your account, बहुत सारे बिटकॉइन, बहुत सारा सोना, another zero. You might have बहुत सारे 0 in your life, but उन zeros की कोई वैल्यू नहीं है जब तक उनके आगे एक 1 नहीं है. Yeah. और वो 1 कृष्णा है. You can keep having the degrees, the money, the bank balance, the wife, the husband, beautiful people, whatever. आप वो सब रखो, कोई नहीं मना कर रहा. Add Krishna to it. If you are earning money, also spend some on Thakur ji. Like, do something for Vrindavan, do something for a sage. कुछ साधु के लिए कर लो, कुछ कर लो. नहीं, ठीक है. You don't want to spend money on the road, no problem. You've got a house. Make that house a house. मंदिर तो बनाओ. Like the main unit of today's homes is the TV. Yeah. Big hall and everything, और बीच में TV. There used to be a time जहाँ मेन चीज मंदिर होती थी. Yeah, beautiful मंदिर. अपने घर को मंदिर बनाना पड़ेगा. उसके अंदर you have to create a home. Like your home is not home अगर उसमें भगवान नहीं रह रहे हैं. So Correct.
यू हैव टू पुट इन एन एफर्ट. आप जो भी कर रहे हो उसके अंदर आप भगवान को ऐड करने की कोशिश कर सकते हो और इसी तरीके से आप उसको स्पिरिचुअलाइज कर सकते हो, इज व्हाट आई फील. अब नाउ और छोटी टाइनी डिटेल्स पे आ जाते हैं कि और क्या कर सकते हैं. यू वुड से अब सब मेरे घर में भक्त नहीं है और मेरी मम्मी नहीं करने दे रही है, या मेरे पड़ोसी कह रहे हैं कि ये कोई उम्र होती है मंदिर जाने की, टिक्के लगाने की या माला करने की या व्हाटएवर. ठीक है, लेट द वर्ल्ड से जो वो बोल रहे हैं, क्योंकि 10 लोग 10 पर्सपेक्टिव और 100 और थॉट्स, वो तो दैट्स इनएविटेबल, वो तो होने ही वाला है. प्रैक्टिकली आप क्या कर सकते हो? यू वुड से कि मम्मी नहीं करने दे रही, कोई बात नहीं. मम्मी को सिर्फ इसलिए प्रॉब्लम है क्योंकि मम्मी को लग रहा है कि यू लीव, आप छोड़ छाड़ के चले जाओगे और फिर आप बोलोगे शादीशुदी नहीं करनी, पैसे नहीं कमाने. मम्मी अपने फ्यूचर के बारे में भी तो सोचेगी ना, क्योंकि उन्होंने आपके अंदर इन्वेस्ट किया इतने सालों तक. तो ऑफ कोर्स, एंड नॉट बिकॉज इट्स अ डील, बिकॉज यू आर अ पार्ट ऑफ द फैमिली. तो नोबडी इज टेलिंग यू कि आप घर छोड़ के चले जाओ. एट दिस पॉइंट आप कुछ ऐसा करना चाहते हो जिससे आप भी भक्ति कर रहे हो और शायद इवेंचुअली आपके मम्मी पापा भी भक्ति करने लग जाए. घर में रह के, माई पेरेंट्स हैव 2 daughters, द एल्डर वन जस्ट गॉट मैरिड, शी इज हैप्पीली सिचुएटेड इन हर गृहस्था लाइफ राइट नाउ. My parents are grihasthas. They have grown 2 beautiful daughters. The younger daughter wants to get married. There's nothing wrong. You can be a grihastha and a spiritual person. At this point, very practically, अगर आपके फैमिली मेंबर्स और whatever कोई ना कोई नहीं करने दे रहा है आपको भक्ति, here's like a trick that works every time. See, आपके घर में ठाकुर जी हैं, भगवान है, नहीं है, फोटो है, मंदिर है, नहीं है, एक प्रिंट करा लो. एक A4 शीट का 20 रुपए लगते हैं. प्रिंट अ पिक्चर ऑफ द लॉर्ड दैट यू बिलीव इन, उनको मंदिर में रखो. मंदिर भी नहीं, अपने रूम में एक शेल्फ पे रख लो. और जस्ट गेट लाइक अ ग्लास, जितना बड़ा आपको चाहिए, whatever size. So get a glass, उसको भगवान जी के सामने रखो, पिक्चर के सामने हो भले. पिक्चर इज नो लेस पोटेंट, उसमें भी वही भगवान है जो मूर्ति में है और जो वृंदावन इज द सेम. इट्स हम कितना मान रहे हैं नहीं मान रहे. आप उनको पिक्चर रखो, उनके सामने आप ग्लास रखो, उसमें आप पानी डालो, उसमें आप तुलसी डालो. अब बोलना मत आपके घर में तुलसी नहीं है. गो एंड गेट इट फ्रॉम समवेयर इफ यू डोंट हैव इट, बिकॉज अदरवाइज योर हाउस इज ऑन द लिस्ट ऑफ यमराज. रिमूव, स्क्रैप योर घर का एड्रेस फ्रॉम यमराजेस लिस्ट, गेट अ तुलसी रखो. आई मीन जस्ट पुट अ ग्लास, उसमें तुलसी डालो और वो भगवान जी को पानी का भोग लगा दो. सब पानी तो पीते हैं, भले नॉन वेज खा रहा हो बंदा, ड्रिंक भी कर रहा हो, पानी तो पिएगा ना. जस्ट ऑफर एक छोटा सा ग्लास टू द लॉर्ड विद प्रेम. भगवान भगवद गीता में कह रहे हैं पत्रम पुष्पम फलम तोयम. तोयम इज वाटर, जो में भक्त या प्रयच्छति. ये 4 चीजें अगर कोई मुझे प्यार से भोग लगा दे, 4 नहीं, कोई एक भी लगा दे इसमें से प्यार से भोग, मैं उसको एक्सेप्ट करता हूँ और उस इंसान के जीवन का शोक मोह भय सब कुछ मैं हटा देता हूँ. सो यू जस्ट ऑफर दैट पानी टू ठाकुर जी विद अ तुलसी. और वो जो पानी है ना, कंसिडर दैट लाइक एनेस्थीसिया दैट विल स्लोली वर्क ऑन एवरीबडी. डोंट लूज फेथ इन द प्रोसेस. आज किया आज ही रिजल्ट चाहिए, ऐसे नहीं होता है. साल भर पढ़ाई करते हो, फिर जाके पेपर देते हो, फिर रिजल्ट आता है ना. व्हेन इट टेक्स 1 साल टू क्लियर 7th स्टैंडर्ड 4th स्टैंडर्ड 2nd स्टैंडर्ड व्हाटएवर, तो ठीक है, थोड़ी सी मेहनत भोग लगा के भी कर सकते हैं. यू विल सी अ डिफरेंस. वो जो पानी है ना, किसी को मत बताओ भोग लगाया. जो घर का मेन मटका है या रैबर है या व्हाटएवर आरओ है या बॉटल्स है जिसमें सब पीते, जस्ट गो एंड मिक्स इट देयर. एवरीबडी इज ड्रिंकिंग प्रसाद बिकॉज ऑफ यू. आपने उसमें एक बूंद भी अगर आपने ऐड कर दी, वो पूरा का पूरा स्पिरिचुअलाइज हो गया. और हर व्यक्ति, भले कैसा भी व्यक्ति हो, अगर वो जल पी रहा है, उसको नहीं पता, मत बताओ. अगर उसको प्रॉब्लम है कि भाई भोग हमको प्रसाद नहीं खाना, डोंट टेल देम, जस्ट गिव देम दिस पानी. पूरी बॉटल में एक बूंद भी अगर भोग लगा हुआ पानी होगा ना, दे विल चेंज. दे से महाप्रसादे गोविंदे. जो भगवान का प्रसाद है वो भगवान स्वयं है. कृष्णा इज द प्रसाद. Krishna is going inside their body even if it is going as water. उनके घर में नॉनवेज बन रहा है, लिखा चल रहा है, करने दो. No problem. Anything going wrong, do this. I am telling you, the person will change. Do you also believe in astrology? So, I would say astrology is a science. जिससे हम अपने फ्यूचर के बारे में जान सकते हैं क्या होने वाला है. वी कैन लाइक ट्राई टू गेट इट प्रिडिक्टेड. एंड एट दिस पॉइंट एस्ट्रोलॉजी इज बिकम लाइक बहुत सारे एस्ट्रो व्हाटएवर और सेज व्हाटएवर है बाहर, लाइक दे आर टॉकिंग अबाउट एवरीथिंग एंड इट्स बिकम लाइक अ बिजनेस एट दिस पॉइंट. लाइक एवरीबडी नोज कि सबको अपना फ्यूचर जानना है, क्योंकि सबने कोई ना कोई उल्टे सीधे काम किए हुए हैं. सो दे वांट टू नो हाउ टू गेट आउट ऑफ इट, एंड जिसके कारण पीपल विल कम. सो दिस इज बिकम लाइक अ गुड बिजनेस एट दिस पॉइंट. That does not mean कि astrology was never a part of our Vedic studies. हमारे शास्त्रों के अनुसार astrology is a science. Yeah. But
जस्ट बिकॉज हमारे शास्त्रों में ये साइंस मेंशन्ड है डज नॉट मीन दैट वी नीड टू नो अबाउट इट. इंसान के चॉइस पे डिपेंड करता है, उसके इंटरेस्ट पे डिपेंड करता है. इफ आई वांट टू नो मोर अबाउट इट आई कैन गेट इनटू इट. बट व्हाट्स द फन? मेरे साथ जो होने वाला है 4 दिन बाद, वो मैं 2 दिन पहले जान भी लूंगी. व्हाट्स द फन? वो होने वाला जो व्हाट्स गोइंग टू हैपन इज गोइंग टू हैपन. बट यू नो वेयर्स द फाइन लाइन? जो एक्चुअली मैजिकल चीज है दैट astrology also cannot predict. I'll tell you 3 things. If you are worshipping Tulsi, if you are doing Nam Jap, and if you are offering pranam to the Lord, अगर आप ये 3 चीजें कर रहे हो, no astrologer can predict your future. क्योंकि future वो है जो हमने अपने past कर्मों से create किया है, जो अपने present कर्मों से create कर रहे हैं. This future cannot be changed in like the whole thing. Somebody would say इसको ये खिला दो, उसको वो खिला दो, काले कुत्ते को पकड़ो, को चावल खिलाओ, ये करो, वो करो. जूता टांग लो, गल के बाहर नजर नहीं लगी. Something. People could say all those things. और शायद वो किसी point तक काम कर भी जाए, शायद ना भी करें. But for a devotee, for a Vaishnav जो ये 3 चीजें कर रहा है, उसके फ्यूचर के अंदर 100% इंटरवेंशन भगवान का हो सकता है. एंड इफ कृष्णा वांट्स ही कैन फ्लिप एवरीथिंग. सो फॉर अ पर्सन हु इज डूइंग दीज 3 थिंग्स, अगेन तुलसी की पूजा, भगवान को प्रणाम और नाम जप, उसका फ्यूचर प्रिडिक्ट नहीं किया जा सकता. बिकॉज इवन इफ द फ्यूचर सेज कि ये गलत होने वाला है, वो गलत होने वाला है, वो नहीं होगा. बिकॉज कृष्णा इज देयर प्रोटेक्टिंग दैट पर्सन, बिकॉज द पर्सन इज डिवोटिंग हिज लाइफ. वो भक्ति कर रहा है, वो भगवान को खुश करने की कोशिश कर रहा है. और जब भगवान खुश है तो कोई ग्रह दुखी हो ही नहीं सकता. When Krishna is satisfied, everybody is satisfied. कृष्ण तुष्टि जगत तुष्टि. जब भगवान इस व्यक्ति से खुश है, ऐसा कहते हैं जब आप प्रणाम करते हो ना, तो आपकी माथे की जो उल्टी रेखा है, कैसे हम स्टैम्प करते हैं, यू सी अ स्टैम्प, उसमें उल्टा लिखा होता है, पर जब आप उसको इंक में लगाते हो, फिर पेपर पे रखते हो, तो वो सीधा हो जाता है. सेम वे जब हम प्रणाम करते हैं भगवान के सामने, हमारे माथे की जो उल्टी रेखाएं हैं वो प्रणाम करके सीधी हो जाती है. जब हम कीर्तन में या सत्संग में क्लैप करते हैं तो हमारे हाथों की रेखाएं चेंज हो जाती हैं. जब हम खुद को भगवान से एसोसिएट करते हैं तो एस्ट्रोलॉजिकल साइंस इज ऑल्सो स्मॉल. वो बदल सकता है अगर हम खुद को भगवान की भक्ति में डेडिकेट करते हैं. सो टुडे पीपल रनिंग बिहाइंड क्या होने वाला है फ्यूचर में, क्या होने वाला है फ्यूचर में, आर ओनली डूइंग इट क्योंकि उनको लगता है कि कुछ ना कुछ गड़बड़ मैंने की है, जिसके कारण मुझे पता ही है कि आगे प्रॉब्लम होने वाली है. बट आई वुड से कि वो एस्ट्रोलॉजर क्या ही बता देगा, उनको टोटका बता भी देगा, आप कर भी लोगे, बट कोई अश्योरिटी नहीं है, उसकी कोई अश्योरिटी नहीं है वो काम करेगा कि नहीं करेगा. और फिर उसके बाद आप 4 महीने बाद फिर से जाके बोलोगे आपने ये करने के लिए कहा था, मैंने किया, कुछ हुआ ही नहीं. फिर वो बंदा और दो चीजें बोल देगा, ठीक है ये करके देखो, वो नहीं, आप पे नहीं सूट किया, आप ये करके देख लो. आई वुड से इस व्यक्ति को वो 3 चीजें करनी चाहिए. दिस पर्सन शुड स्टार्ट डूइंग वो 3 चीजें जो आई हैव जस्ट सेड, एंड नो एस्ट्रोलॉजर विल बी एबल टू प्रेडिक्ट कि उसके जीवन में क्या हो जाए वाला है. बिकॉज दिस पर्सन's future is in Thakurji's hand, not in an astrologer's hand. You have come to Vrindavan. That's an action that you have done, which is going to give you a fruit in the future. So not just previous janam, also this janam, also right now at this point. Whatever you're doing, you're creating a future and you're living because of your past. समझ आया? You did something in the past जिसके कारण फाइनली आपके पास इतना सुकृति था, like you had इतना बैलेंस कि आप वृंदावन आ सकते थे. You've come to वृंदावन. Now because you're in वृंदावन in कार्तिक, आपने डिपेंड करता है आप क्या करोगे, उससे आपका फ्यूचर क्रिएट हो जाएगा. So to come to Vrindavan, you could say was a destiny, but you did something जिसके कारण this destiny was created. You had a free will to create your destiny. And for which you could come here, and now with whatever actions you'd make right now in this moment. People also say that whatever we did in our past janmas, जो भी हमने अपने पिछले जन्मों में किया जिसके कारण today is unfolding, which is right. It is true. We say that we want to understand कि कर्म क्या होते हैं और किस हिसाब से काम करते हैं. Krishna says in Bhagavad Gita that the whole concept is a little difficult to understand. Like we cannot surmount के किस कर्म का फल कब कैसे मिल जाएगा. Correct. There are 2 ways we get उस कर्म का फल. एक होता है इंस्टेंट, मैं थप्पड़ लगाऊं सामने से मुझे थप्पड़ लगे क्योंकि कोई गांधी जी तो है नहीं, तो आई स्लैप, आई गेट द स्लैप बैक, दैट्स क्विक एंड द कर्मा जस्ट नलिफाइड देयर, हो गया, मैंने मारा, मुझे मिल गया, फिनिश. बट देयर आर सम जिसको कुछ जन्म लग जाते हैं to fructify, to come back to me. For example, Kaurav, Pandav,
जो युद्ध हुआ था जहाँ पे कृष्ण ने भगवत गीता सुनाई थी. नाउ कौरवास जो गंदी वाली साइड थी और पांडवास जो अच्छी वाली साइड थी. पांडवास वर 5 brothers, Kauravas were 100 plus 1. They had a sister. So that's 100 plus 1, 100. अब this धृतराष्ट्र who's कौरवों के पापा, yeah, he did something wrong 50 lifetimes पहले. That was एक बर्ड का नेस्ट था और उसमें तो बहुत सारे बेबी बर्ड्स थे. What did he do? उसने वो मेन ममा बर्ड की आंखों में he like plugged a straw जिसके कारण वो ब्लाइंड हो गई. It took 50 years for that bad karma to fructify. 50 साल बाद this guy was born blind. 50 years. क्यों 50 years? Because उसने वो बर्ड के जितने बेबीज को किल किया था they were 100. ये 100 बेबी सन्स को प्राप्त करने के लिए उनको 50 साल का पहले पुण्य लगा. तो जाके ही कुड गेट 100 sons. समझ आ रहा है? In each life he had to do something good so that he could get a son. And then it took him 50 lifetimes to get 100 sons. And then he was blind. He was born blind with 100 sons. And that 50 years purana karma was fructified after 50 years. So we don't know कि हमको आज कौन से जन्म के कौन से कर्मों के फल मिल रहे हैं. Correct. But instead of worrying about क्या किया था पिछले जन्मों में, क्यों मेरे साथ ऐसे हो रहा है, I would say we would focus on the right now. आज if I do the right thing, my future is beautiful. What's done in the past मैं उसका कुछ नहीं कर सकती अब. और उसके बारे में बैठ के दुखी होने से भी कोई फायदा नहीं है. बिकॉज 2 types ऑफ सिचुएशंस, एक होती है जो हमारे कंट्रोल में होती है, एक होती है जो हमारे कंट्रोल में नहीं होती है. जो हमारे कंट्रोल में है उसके बारे में स्ट्रेस करके कोई फायदा है नहीं. कंट्रोल में तो क्या स्ट्रेस. दूसरी जो हमारे कंट्रोल में ही नहीं है उसके बारे में स्ट्रेस करके कोई फायदा नहीं. कंट्रोल में नहीं है तो क्या क्या किस चीज का स्ट्रेस. करेक्ट. वी क्रिएट आवर ओन मिजरी बाय स्ट्रेसिंग उस चीज के ऊपर जो हमारे कंट्रोल में ही नहीं है. इट्स डन. और उसका जो रिएक्शन है वो आने ही वाला है. अगर हमने वो गलत काम करने की हिम्मत की थी तो रिएक्शन को फेस करने की हिम्मत भी करनी पड़ेगी. एंड दैट इज वेयर मोस्ट ऑफ द वर्ल्ड टुडे इज सफरिंग. क्योंकि बुरे कर्म कर लेते हैं फिर कहते हैं देखी जाएगी, अब जब हो रही तो देखी नहीं जा रही. बट देयर इज नो ऑप्शन. यू कैन नॉट ट्रिक द लॉर्ड. हिज सिस्टम इज सो ब्यूटिफुल. उसमें कोई लैग नहीं होता, उनको कोई छुट्टी नहीं मारनी पड़ती है. देयर इज नथिंग दैट गोज रॉन्ग. एवरीथिंग इज सो परफेक्ट. और जो आपने किया है आपको उसका रिएक्शन मिल ही जाएगा. देयर इज ओनली वन केस जिससे आपको उस चीज का रिएक्शन नहीं मिलेगा, इज इफ ही इज प्लीज्ड. इफ द लॉर्ड इज हैप्पी with your actions, if he is santusht, he can make like a change in the future for you to come. जो शायद गड़बड़ हो सकता था आपकी भक्ति के कारण शायद नहीं होएगा. God is not looking at हम कितने सक्सेसफुल हैं, हम कितने प्योर हैं. वो ये देख रहे हैं कि हम प्योर बनने की कितनी कोशिश कर रहे हैं. The effort is what counts. And he is called some siddhi haritoshnam. उनको if we please him, he is called भावग्राही जनार्दना. जो भाव को ग्रहण करते हैं, that जनार्दन. He does not want छप्पन भोग. He does not. उनको बस खाने की कोई कमी है. Does not need anything. He has everything. What he needs is our effort and love. Krishna is so strong. His bhakti is so strong. अगर आप भक्ति कर रहे हो, even if a big calamity had to come on you, he protects you from that. और शास्त्र से मारे कृष्ण राखे के और राखे कृष्ण मारे के. वे भगवान रखना चाहते हैं तो कोई नहीं मार सकता, और भगवान मारना चाहते हैं तो कोई नहीं रख सकता. सो वृंदावन में देयर आर सो मेनी हिडन जेम्स, है ना. कितने सारे ऐसे मंदिर हैं, प्राचीन जगह. जैसे अभी आपने वृंदाकुंड के बारे में बताया, मुझे नहीं पता था. कितने लोगों को जो सुन रहे हैं उनको नहीं पता होगा. तो टेल अस समथिंग मोर अबाउट ऐसे कोई हिडन जेम्स मंदिर आपको पता हो. Vrindavan has a lot of hidden gems is what he said. Hidden gems सिर्फ मंदिर नहीं है, hidden gems इंसान भी है. There are sages in Vrindavan जो हमको one side में लगेगा normal guy, old guy doing his bhajan or whatever, पर उनके पास ऐसी ऐसी सिद्धियां होती हैं जो हमको दिखाई नहीं देती है. There are people and places in this place जो beyond understanding है. So I'll tell you like a short story about this sage that I read in a book, authentic book, not mentally concocted. So like during the time of Britishers, they would love to come to Vrindavan because यहाँ पे एक aura है, and like those guys could also sense कि कुछ तो है, so they'll come here. Govardhan में there's this
वाइसरॉय ब्रिटिशर जिसको हंटिंग करनी है अपेरेंटली, और गोवर्धन के ब्रजवासियों ने ना उनको बोला कि आप कहीं पे भी हंटिंग करो पर आप गोवर्धन में मत करो, क्योंकि यहाँ के जो एनिमल्स है ना ये बहुत स्पेशल है और ये लाइक डियर टू कृष्णा, तो मत करो। पर अब उसको क्या डियर टू कृष्णा कॉन्सेप्ट समझ आएगा, ब्रिटिशर। So now this Britisher viceroy he's like, shut up, let me just do whatever I want to do. And then he just goes out with his hunting gun and he's in the forests of Govardhan hunting. Forests of Govardhan से उनकी साधना और meditation और परिक्रमा. This guy's hunting. So he's like looking for somebody, and finally he sees a deer. And he's running deer के पीछे for a little bit and then he finally shoots. The deer के पैर में लगता है and the foot starts bleeding. And the deer still runs away. तो अब ये deer जो है he runs और finally एक cave के अंदर he just goes. तो अब ये जो वाइसरॉय है ब्रिटिशर, ही इज रनिंग बिहाइंड फाइंडिंग, वो ब्लड के कारण ही इज एबल टू ट्रैक, और फाइनली ही आल्सो गोज इनटू द केव और वो देख रहा है कि वो डियर कहाँ गया, ही इज जस्ट लाइक लुकिंग एंड देन थोड़ा सा अंदर जाके ही जस्ट सीज देयर इज नो डियर, देयर इज नथिंग हियर, कहाँ गया, ही जस्ट सीज देयर इज अ साधु सिटिंग और वो तपस्या कर रहे हैं। तो वो साधु से पूछते हैं कि डिड यू सी लाइक अ डियर कम इन, आपने देखा कुछ ऐसा? तो साधु से नो, this person is reluctant, उसको he is I believe in what I see, मैंने देखा है उस पेयर को अंदर आते हुए, how did he vanish, is there another exit to the cave or something? No, I don't know. Let me stop, let me please shut up. He did not say that, but that was his mood. I'm doing my sadhana, get lost. So now this Viceroy is a little, he समझ नहीं आया क्या हुआ, he's just like observative of what's in the cave and then he sees वो साधु के पैर से धूल आ रहा है. And it's a real thing. What? Just like few years back. What? Really? Yes. My word. So this is not an ordinary place. And the people here might seem ordinary, but they're not ordinary. वो जो साधु थे उनका नाम मोनी बाबा था, आज भी उनकी समाधि है गोवर्धन के परिक्रमा मार्ग पे. When you go there, ब्रजवासीज will tell you this story. इसे कहते हैं ना कि ब्रज में वास हर किसी को नहीं मिलता. Krishna is very selective. This person deserves. And you have to be very reserving if you want to be went out. Not just Krishna, Radharani. उनका धाम है. She would not let a fool be here. और अगर आप आ भी गए हो ना, she'd give you so many tests. So many tests. कि आप sustain कर पा रहे हो कि you're packing your bags and leaving back. So yeah, it's not easy. It's very difficult. We were talking about how there are beautiful hidden places. So gems सिर्फ जगहें नहीं है, इंसान भी है. हमको परखना नहीं आता है, सीखना पड़ेगा. सीख सकते हैं, टाइम लगेगा, बस सीख लेंगे. So that's one. And then there's like plenty places. So ठीक है. Vrindavan is not just Vrindavan. Vrindavan is a huge place. It is 84 coasts. It's very big, very big. You can go around walking and it takes a month to complete the whole walking around Vrindavan. I've done that twice. So Vrindavan is huge, and in Vrindavan there are so many places which are like not known to the world. What we know is what's on the main road: Prem Mandir, Pranti Hari, Swan Mandir, Pratnidhivan, that's what we know. Which are ये सारी जगहें भी बहुत potential है, of course, because they are on the land of Vrindavan. Not mentioning the rest to de-mention these, but there are some places जो बहुत 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 पुरानी है. लेकिन फॉर एग्जाम्पल कृष्णा ने कालिया के साथ जो पूरा लीला किया था, उसके लिए वो एक ट्री से जंप किया फाइनली नीचे. दैट ट्री इज स्टिल हियर. It's in the परिक्रमा मार्ग. It's like a famous thing here. The tree is still here. और इमेजिन कृष्णा इस प्लैनेट पे 5000 साल पहले थे. वो ट्री 5000 साल पुराना है. There's a tree also still here. It's a इमली का पेड़. By the way, वृंदावन में इमली नहीं उगती. इमली को राधा रानी ने श्राप दिया है वृंदावन में, you cannot grow here. Why is that? She was wanting to see Krishna and Krishna was waiting on this tree, and then she was quickly running because she was a little late. अब वो इमली के कारण slip हो गई. And she was like, "Ish." And she cursed him. You cannot grow here. आज भी ब्रज में इमली के पेड़ है. इमली उगती भी होगी पर पकती नहीं है. कुछ नहीं. Like it's a shrap to इमली in Vrindavan. पर वो इमली का पेड़ जिसके नीचे राधा रानी स्लिप हुई थी वो आज भी है. Also on the परिक्रमा मार्ग called the इमली तला.
So ऐसी बहुत सारी जगह है यहाँ पे. And then there's Nidhivan. Everybody talks about, goes to and knows about Nidhivan every night, even today. और एक point of time के बाद after the sun has set वहाँ पे कोई नहीं जाता. No humans, no animals, no ants, no monkeys. Everybody leaves that place. वहाँ के पुजारी वहाँ के मंदिर को और पट को लॉक लगा के बंद करके आते हैं और अंदर वो लोग सिंदूर लड्डू पारी दे की बेसिक प्रसाद होगा फॉर द लॉर्ड. नेक्स्ट डे इन द मॉर्निंग में सम एवरीथिंग्स पैक्ड, कोई अंदर नहीं गया. एवरी डे द सिंदूर इज स्मियर्ड, द लड्डू इज हाफ ईटन, द पानी इज हाफ गॉन एंड लाइक द चद्दर इज वोल. सो लाइक वो जगहों पे आज भी भगवान आते हैं. इट्स नॉट दैट ही इज नॉट हियर, ही इज स्टिल हियर. इसीलिए तो इतने सारे लोग वृंदावन आ रहे हैं, बिकॉज दे वांट टू एक्सपीरियंस द डिविनिटी जो यहाँ पे अभी भी है. सो दैट्स निधिवन. एंड अगर आप वृंदावन आए हो और अगर आप गोपेश्वर नहीं गए हो, गोपेश्वर इज ऑल्सो इन वृंदावन, लाइक वृंदावन नॉट मथुरा, इट्स इन वृंदावन. If you have not been to Gopeshwar, your Vrindavan Yatra does not consider complete. So you should go to Gopeshwar अगर आप वृंदावन आए होते. And then Krishna once tells his friends के let's go and tease the gopis, like his young baby. और वो गोपियों के पास जाते हैं और गोपियों को कहते हैं कि you know मैं राम था. कृष्ण से इस तरह वो भी like what hello कोई और नहीं मेरा बेवकूफ बनाने के लिए, go somewhere else. Then Krishna is like no, I was Lord Ram in the past yuga. And the gopis like this, thank you, bye bye. And then Krishna say I can prove it. Gopis don't care and Krishna like listen to me, but I can prove it. और फिर वो गोपियाँ कह रही है कि please, वो गोपियों ने बोला चलो ठीक है, you're saying that you were Lord Ram or whatever. पूरे ओशन के ऊपर राम जी का नाम लिखा के we could float such big rocks. लेट्स सी तुम्हारे नाम लिखे हुए रॉक्स तैरते कि नहीं. ओशन छोड़ो, यमुना पे ही करके देखने के. एंड देन शी टेल्स कृष्णा तो बस तो बंदर भी है बुलाओ, लाइक कॉल देम, लेट्स हैव देम राइट दिस एंड लाइक पुट इट इन यमुना, विल सी, पता चल जाएगा. एंड देन कृष्णा सेज ओके, चैलेंज एक्सेप्टेड. ही कॉल्स हिज मंकी फ्रेंड्स एंड और कावर्ड फ्रेंड्स और सब आके ऐसे पत्थरों पे कृष्णा लिख रहे हैं और उसको ऐसे पानी में डाल रहे हैं. एंड द पेबल्स, द रॉक्स सिंक. और सारी की सारी कॉपियाँ राधा नहीं हासिल लिए. बोला साला किसी और को बेवकूफ बनाओ. Bad day for you, poor guy, bye bye. And then Krishna saying, no, wait, go closer. And then they go closer to Yamuna and they see that the rocks come up. And, they come on top. And then they are unable to realize, hello, what's happening? Krishna goes, I told you. And then they create a whole setu on Yamuna and the setu is still there. जो कृष्ण लिखा हुआ है Yes, पे? Yeah, the setu is still there. It's in Kamevan. It's really far, but it's in Jarasi course, Braj. There's a place, another place in Kamevan also. तो जहाँ पे there's a slide, like कैसे झूले होते हैं gardens में जहाँ बच्चे झूलते हैं, the one where you climb stairs and then you slide. There's a natural slide on a mountain. And उसको फिसलनी शिला कहते हैं also in Kamevan, जहाँ कृष्ण अपने सखाओं के साथ जाते थे और like he'd like go slipping on that slide. That was his casual slide. So there are such places in Vrindavan, especially Kamevan. Vrindavan में 12 forests है, one of which is Kamevan, which is very beautiful and surreal. So like there are so many, इतनी सारी और जगह है वृंदावन में like that you have to do another podcast so that we can talk about such places. There's a place जहाँ पे Radha and Krishna they got married. Yeah, it's called the Bhandir one. The tree is still there. वहाँ पे Brahmaji ने Radha and Krishna, he got them married there. That's also one of the forests of Vrindavan, the Bhandir one. जो तिथियां होती हैं, जैसे अभी देवउठनी ग्यारस आने वाली है, how are these तिथि important? हमारे शास्त्रों में there's a study of Vedic maths, Vedic science, Vedic astrology. This is a part of that. And through these days, you will see, if on an Ekadashi day, उसको अग्यारस कहते हैं, जो 11th date पे आती है, in the waning and the waxing moon, महीने में 2 बार. If you see, आप एकादशी के दिन पे, even if you do a little bit of a small Krishna conscious or a spiritual act, you will feel the potency of it. These are not ordinary days. जैसे कहते हैं, these days are the gateways. इन दिनों पे special दरवाजे खुलते हैं जो आपको spiritual world लेकर जा सकते हैं. So these are not ordinary days.
महीने में 2 पक्ष होते हैं, एक शुक्ल पक्ष होता है, एक कृष्ण पक्ष होता है, 15-15 में डिवाइड होते हैं। फिर महीने में एक अमावस्या आती है, एक पूर्णिमा आती है. Positive energies are to the topmost on a Purnima day or an Ekadashi day, and the negative energy has a very big, strong control near an Amavasya day because the moon's not visible on that day. All of this happens. It is science. वो दिन उन दिनों में उस तरीके की एनर्जी है. लाइक इफ ऑन जैसे अगर आपने पूर्णिमा के दिन पे कोई काम शुरू किया है तो उस काम लाइक इन दैट वर्क फेलियर इज लीस्ट एक्सपेक्टेड. अगर आप अमावस्या पे या अगर आप ऐसी कोई लेस पोटेंट डे पे कोई ऐसी चीज शुरू करते हो तो there's a possibility उसमें फेलियर्स हो सकते हैं. सो फॉर यू टू नो अ जनरल बेसिस ऑफ इट इज गुड फॉर यू. बाकी अगर आपको कुछ नया शुरू करना है तो फिर आप पूर्णिमा पे करो या एकादशी पे करो या भगवान का आशीर्वाद लेके करो या एक मुहूर्त होता है जिसके हिसाब से यू कैन डू इट. यू डोंट नीड टू रन टू एन एस्ट्रोलॉजर फॉर एवरी स्मॉल थिंग कि भाई मुहूर्त के ताको. देयर आर सम मुहूर्त इन ऑल डेज विच आर गुड ओनली. जैसे साल में 2-3 दिन ऐसे आते हैं जिस दिन मुहूर्त देखना ही नहीं पड़ता, विच इज बसंत पंचमी. दैट्स जस्ट अ स्ट्रॉन्ग डे वेयर एवरीथिंग गोइंग राइट. या कार्तिक की कोई भी एकादशी, 2 एकादशी में से कोई भी ले लो. दीज आर डेज वेयर everything is supposed to go right only. So we don't have to always rely on somebody else who when do I begin doing something good. Yeah. Or it's so subtle कि this is a concept in the foreign now. They call it conscious conception. जिसके अंदर they take lakhs and millions of rupees and educate their audience कि आपको when you want to conceive a baby, this is the time you should do it and this is how you should be prepared before you're doing it and this is what you should do for your body and for your mind and all that. This is the शास्त्र. हमारे शास्त्रों में से उन्होंने निकाल के वो बेच के अपना उसको बिजनेस बनाया हुआ है. And we unfortunately have no idea of what does it mean. It's called Garbhadan Samskar and it's there in the Shastra. And this is also somehow connected to the changing in the world. मतलब if you see simple words, आप बोल रहे हो कि हमको why is it important? Why do we need the Vedic calendar? Or why do we need the Sanatan calendar? क्योंकि अगर हमको आइडिया है कि okay this day is a very strong day, this is an Ekadashi day. Okay, this is a very very important day and Kartik coming or something so strong is coming. That is a time I can ask for more blessing. That is a time I can actually conceive and get such a great soul. At last, I just wanted to ask कि when you say living the life, living Bhagavad Gita life, what is that one shlok you want to keep it with yourself? कि कभी नहीं छोड़ोगे आप. But what is that one learning you will keep it with yourself for life? As a kid, I wrote a poem on one of the shlokas from Bhagavad Gita, and that says that even if Jeevan mein there's dukh or there's sukh, it's relative. It would come and it would also go. Just like summer and winter. Summer comes, goes, winter comes, goes. एक धीर इंसान या एक सोबर व्यक्ति समर के कमिंग एंड गोइंग से इफेक्ट नहीं होगा. Same way, if we are a sober person, coming and going of misery could not matter so much to us because we would know and realize and apply कि ये दुख को आने के लिए कृष्णा का सैंक्शन चाहिए था. I have to learn something out of this, and if I do, my life will not be my life will not be the same. My mama once told me, lessons in life are repeated until learned. जब तक हम उस लेसन को नहीं सीख लेंगे वो 10 तरीकों से और आता जाएगा. And we can keep fighting with it. Why is this happening? It just keeps happening. The things keep falling apart. We are not trying to learn the lesson that Krishna is trying to put our way. We're so dumb. He's trying to put, beta, this is not a problem, this is a lesson. But we're just not accepting that this is a lesson. We keep fighting with it. I would say the teaching that I take the dearest to my heart from the Bhagavad Gita is whatever comes, matra sparshastu pante, no problem. Even if it is a difficult situation, it needed Krishna's approval. If he has sent it to me, I deserve it and I have the strength. Because I am smaller than Krishna but bigger than my ups and downs. So I know with him behind me, no problem is a problem. I know it's a little short time to know, but I want you to give me any advice which you think you should give me from Bhagavad Gita. I should, वो चीज़ मैं अपनी लाइफ में लाऊं तो maybe it's better for my living. What's that one thing? Yeah, I just we talked about it throughout. You told me there's a tulsi blooming in your house now.
I would say कि you should go around तुलसी every day at least 3 बार. तुलसी की दिन में 3 बार परिक्रमा कर लो and then you tell me next time we meet what happened. जानवी से बहुत सारी बातें करनी थी बट देयर इज अ ऑलवेज लैक ऑफ टाइम. शॉर्ट रखना होता है. जितना हम कवर कर सकते थे वी ट्राइड कवरिंग एवरीथिंग विच इज नीडेड रिक्वायर्ड. होप यू गाइज लाइक इट. होप यू गाइज एंजॉयड इट. थोड़ा भी डिफरेंस आपकी लाइफ में इसको देख के सुन के आएगा. इट वुड मीन सो मच टू अस. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज डू लाइक, सब्सक्राइब, drop a comment, drop whatever you like, whatever you don't like, want me to change. You can say everything here. Thank you so much. Radhe Radhe.